मेरा बेटा उसको ज्यादा पूछ रहा. Be happy that your son knows how to take care of a woman. Say it proudly. My son can take care of his wife very nicely. ऐसा भी होता है, ऐसे भी इंसान मौजूद है. मेरे को खुद वो जिंदगी नहीं मालूम थी, but trust me, there are ससुराल वाले worse than what I faced. Women are not good mothers now. They have to learn to become mothers. Because कई तो बच्चियां ऐसे थे कि आपको मालूम आपका स्लॉट मिलना बल्कि मैं तहज्जुद पढ़ी थी. आदमियों को ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, आदमियों को औरत ही चाहिए. इन दी एंड मटेरियलिज्म किसको चाहिए? Ladies. Were you mature enough to understand what was happening with you when you were 16 years old? I don't think so. बस somebody has to say stop it. We have to change now. Yeah. बस भाई 4 पैसों के लिए इतना मत इरिटेट कर दो आप हम लोगों को. कहीं भी चले जाती हूँ मैं, भीख मांग लेती हूँ, बिकॉज दिस वॉज माई कंडीशन व्हेन आई लेफ्ट. मेरी बात लिख के ले लो आप. सामने वाला आदमी औरत को इज्जत दिया और वो औरत उसकी कदर नहीं करी तो ऐसा तो नहीं हो सकता. मेरे मम्मी उनके पैरों में बैठ के रोए थे कि मेरी बच्ची को अच्छा रख लो. दैट We will be back talking to our guest in 1 minute, but first I need to tell you about Peshawar restaurant and its love story with biryani. People born after the 2000s unfortunately never truly experienced the original flavor of Hyderabadi biryani. Why? Because back then biryani was made with love. Now most people make it just for the sake of business, but Peshawar is one of those rare restaurants that never compromised on quality. One bite of their biryani genuinely feels like going back to old Nizam era Hyderabad, where every grain of rice was cooked with patience, care and flavor, not just masala thrown into a vessel and hope for the best. And what I personally respect most is the mindset behind the brand. The founder himself says, and I quote, "When people hand you their hard-earned money and say thank you for serving us good food, that's a big responsibility." And honestly, that reflects in the food. If you watch my Instagram story regularly, you already know this. I personally prefer Peshawar biryani over almost every other restaurants in Hyderabad. So if you're craving authentic Hyderabadi biryani that actually tastes like real Hyderabadi biryani, head to your nearest Peshawar branch or order it from your favorite food delivery app. You will enjoy every bite of it, I promise. Now, let's get back to the podcast. People, we have a slightly crazy dream. Our goal is to make Table of Wisdom one of India's top 10 podcasts by the end of 2027. Now, I can't do that alone. If even one conversation on this channel has ever made you think differently or helped you make a better decision, I would love for you to hit that subscribe button and follow us on Spotify and Instagram. Every single subscription and follow tells YouTube, Spotify and Instagram maybe more people should watch this weird guy asking strangers uncomfortable questions. I'm Furqan Ahmed, your host. Thank you for being a part of this journey. Iman Zaidi, ma'am, welcome to the Table of Wisdom. Thank you so much, and it is an equal pleasure to be coming and talking to this person because I really admire your sessions that you have created. और हैदराबाद के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप लोगों की बैकग्राउंड स्टोरी निकाल के बता रहे, तो इट्स वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग. ग्रेटफुल. तो यूजुअली मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, बट आई चोज टू स्पीक टू यू एंड chose you as the first person जिससे मैं अपना पहला podcast करूँगी. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, more than your work as a makeup artist, I found your understanding of human nature in general to be very fascinating, I must say. मैं आपका Instagram ईमान ज़ैदी स्क्रॉल करा था, उसमें एक कैप्शन था, वो ये कि The Rebellion. Yes. That's exactly what I choose to call a woman who refuses to back down or settle for injustice. An inqilabi aurat, a rebel woman. If women wins, humanity loses. And if men win, humanity loses just the same. So wake up before it's too late. Wake up before robots take their place in our homes. Wake up and fight your own pride and ego. Don't raise your weapons against women. Choose differently this time. Understand what they are saying. Reflect on what they truly mean. Give yourself a chance to change and lead righteously. You cannot win the battle by force, only through love, understanding and acceptance of your mistakes. Help women restore the peace that society has destroyed. Power
in any form is blinding. Let go of the male ego and lead with order and balance. Our homes can become symbols of peace if our leaders take accountability and stop exploiting women. The rebellion just has begun. Don't let it go too far. एक तो वार्निंग भी दे दी है इसमें लास्ट में, मैं डर भी गया उससे. अच्छा सर, मैं जब मैंने वाले बस रीडिंग दिस, मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया, वो ये कि what made her write this? So how would you answer that question, ma'am? कोई भी कुछ लिखते हैं ना तो उनको अपनी पर्सनल जर्नी का रिफ्लेक्शन मिल जाता. लाइक एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस वुमन हैज़ गॉन थ्रू समथिंग दैट मेड हर राइट समथिंग सो पावरफुल. एंड यूजुअली आई एम अ पर्सन हु राइट्स, नॉट अ पर्सन हु स्पीक्स. सो आई एम फाइंडिंग माई वॉइस एंड आई एम ट्राइंग टू स्पीक अप सो दैट क्या है ना, आजकल ऑडियंस जरा बात करे तो समझ में आ रहा, नहीं बात करे तो खाली लिख के छोड़ दिए तो जैसा थोड़े लोग पढ़ के समझ सकते, हर कोई नहीं समझ सकते. Too long didn't read बोलते हो ना. एग्जैक्टली. तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, सी आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन सो दैट आई कैन हेल्प पीपल. एंड इतने टाइम से तो मैं बहुत अच्छे से बैकग्राउंड में बिकमिंग अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, मेरे ब्राइड्स लाइमलाइट में, क्लाइंट्स को लाइमलाइट में सामने रख दी और अपने आप को हमेशा पीछे रखी. बट behind the scenes, it doesn't mean that I was not a powerhouse in my own self. But what I felt recently is a push that, you know, get out of your comfort zone and whatever knowledge you have acquired, put it out, no matter how it is. ठीक है, मैं डरती हूँ थोड़ा बात करने से और बेवजह कॉन्ट्रोवर्सीज में आने से, क्योंकि आई हैव अ करियर एंड ऑल दैट टू मेंटेन. फिर मैं सोचती हूँ कोई गलत सोच लिए तो. बट देन आई रिसेंटली फाउंड आउट दिस पावर कि फिर से वही हो जा रहा ना कि लोग क्या बोलेंगे. तो मेरे को उसमें से बाहर निकल जाना है कि अब लोग क्या बोलेंगे. अब लोगों को समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट, बिकॉज आई हैव कम इन टर्म्स विद द ट्रूथ. मेरे को भी कड़वी लगी वो बातें जो मैं अपने आप के साथ बैठ के करी एंड वो लिखी भी कि यू नो यूजुअली लोगों की क्या रहता, मैं कुछ हूँ. अपने हैदराबाद में तो पूरा मैं बहुत हो गया, बहुत हो गया. और ये कहाँ से रूट कॉज है? द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, दैट मैं आपको थोड़े ये भी बोली कि वुमेन के अंदर चेंजेस भी आना बहुत ज़रूरी है. नार्सिसिज्म इज एक्चुअली समथिंग दैट स्टार्ट्स इन द वूम्ब ऑफ अ मदर. बच्चा नार्सिसिस्ट क्यों बन रहा, वो मेरे को भी समझाना है, बिकॉज बहुत हो गया. मैं शादियों के कारोबार में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बच्चियों को भी ऑब्जर्व करती हूँ और जो है सो माहौल को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि ये हो रहा क्या है. और इतने साल से जब कर रहे, तो अब मेरे सामने जब कोई दुल्हन बैठती तो उसके बैठने मतलब कुछ बात करने से पहले आई कैन एनालाइज दैट वेयर दिस वुमन इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट हर इनसिक्योरिटीज आर एंड व्हाट हीलिंग शी नीड्स. इतना एनालाइज कर ले सकती हूँ अब मैं औरतों को. इसलिए मैं औरतों के बारे में ही ज़्यादा बात कर रही हूँ कि हमारे अंदर भी कमियां हैं. हम बहुत ज़्यादा बोल दे रहे कि मर्द ऐसे है ऐसे है ऐसे हैं, होंगे अपनी जगह, पहले अपन लेकिन अपने ऊपर भी फोकस करना है. और कैसा हो गया, देखा देखी तो अपने लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा है और उन्होंने जो कराए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लैकिंग है. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही? तरबियत से. और तरबियत कौन करते? पेरेंट्स. और सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल खड़ाया जाता? माँ. ये चीज़ें कहाँ से बर्थ ले रही? इट कम्स मोस्टली फ्रॉम द मदर. जो आप डिवाइन बैलेंस में हैवॉक क्रिएट हो रहा, जो आप मेरी राइटिंग से आप पढ़ के बोल रहे, वही बात पे मैं यू नो एलैबोरेट करना चाह रही हूँ. बट आई कम फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई कैन टॉक लाइक थ्रू माई विजन्स, व्हाट आई हैव एनालाइज्ड. बिकॉज if you just speak your own story without analyzing the other person, because मेरी स्टोरी ऐसी है बट सामने वाले की स्टोरी वैसी नहीं है. समझे आप? अपना अपना नज़रिया ही अपन थोप देते दुनिया पे, वैसा नहीं रहता. यू हैव टू अंडरस्टैंड एक दूसरे के नज़रिए. तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे. क्यों? क्योंकि शादियों के मामले में देखिए आप, हमारे को अच्छी बच्ची होना, हमारे को खूबसूरत होना, हमारे को ऐसी होना, हमारे को वैसी होना बहुत है. बट इन दी एंड व्हेन शी गेट्स मैरिड एंड यू नो शी कम्स होम, देन दे विल से उसके पास अखलाक नहीं है, तमीज़ नहीं है, बात नहीं करी, मेरे बच्चे को चोरी कर ली, ऐसा कर ली. आप बच्चे को चोरी कर ली ये बहुत हो गया. मतलब हमारे भाई के ऊपर जादू कर दिए. आप ही पसंद करके लेके आए थे ना. टेल मी, कौन पसंद कर रहे? पेरेंट्स ही कर रहे ना. और कई बच्चे ऐसे हैं अपने लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दे रहे, नहीं मेरे अम्मी के पसंद से शादी कर लेता हूँ. ये सब कहाँ से, ये सब खिचड़ी अराइज हो रही? तरबियत से. और बच्चियाँ भी थोड़ा मैं मेल साइड का भी साइड दूंगी.
बच्चियों के पास ये बहुत ज़्यादा आ गया इट सीम्स कि उन्होंने बहुत पैसे वाले रहना, बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ इन द सोसाइटी, आई शुड बी एबल टू शो ऑफ एंड ही शुड लव मी लाइक दिस, ही शुड गिव मी दिस दैट, जो गर्ल्स के ख्वाहिशात रहते, वैसा करे तो ही इज़ अ गुड मैन और समथिंग. उसके बाद क्या बोलते हैं, अरे उसके इतने अफेयर्स है, उन्हें ऐसा निकल गया, उन्हें ऐसा हो गया, वैसा हो गया. तो भाई आप पट रहे वो चीज़ के लिए ना, समझ रहे आप पहले वो अखलाक ही नहीं देखे, फिर बाद में बोल रहे उसका ना लॉयल्टी नहीं है. आप पहले क्यों नहीं देखे? इफ अ मैन इज रिच एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ही इज डू शोइंग ऑफ ऑल दैट स्टफ. और एक भी चीज़ ये है कि अरे अपने दोस्तों के पास से गाड़ियाँ वगैरह लेके आके शो ऑफ कर लिए, हम पड़ गए, उसके बाद जो है सो हमारा खसारा हो गया. गर्ल के पेरेंट्स का भी ये नुकसान है, क्योंकि वो लोग भी वही देख रहे, बचपन से बच्ची को ये बोल रहे कि अल्लाह करे तुम्हारा बहुत बड़ा पैसे वाला मिले, ऐसा मिले. नसीब ऐसा नहीं दुआ कर रहे कि बहुत अखलाक वाला मिले, आला किरदार वाला मिले. क्यों नहीं दुआएं दे रहे ऐसे? बाद में तो आप लोग वही बोलते हैं ना, उसका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. डिवोर्सेस आर ऑल्सो ऑन द राइज. एंड मेरे पास तो अब तो सेकेंड मैरिजेस के ज़्यादा ब्राइड्स हैं. तो सही, यस, सेकेंड मैरिजेस के ज़्यादा ब्राइड्स हो गए. अगर आपको रेशियो देना है तो क्या देते हैं आप? किस चीज़ के? फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम. अभी तो देखिए सेकेंड एंड थर्ड के भी ज़्यादा हो गए. ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा? आई वांट टू अंडरस्टैंड. अगर आप कुछ नंबर दे सके तो आई विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड. आई वुड से 70%. आर यू किडिंग मी? 70% 70% मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये चीज़ जज कर रही हूँ. बट इफ़ आई गो आउट इन टू द NGOs एंड एवरीवेयर जहाँ पे औरतों की मदद होती, वहाँ पे आप देखो, आप 85 to 90% बोल सकते, 10% कहीं ना कहीं लेके चलने वाले मैरिजेस हो गए. इट्स वेरी डेंजरस व्हाट द सोसाइटी इज गोइंग इनटू. एंड सबसे ज़्यादा पेनफुल ये भी हो जा रहा कि बच्चे भी हो जा रहे कोई मैरिजेस में, तो वो बच्चे कितने लोनली हो जा रहे, यू नो, दे आर बीइंग ब्रोकन. एंड इट इज़ हाई टाइम द वुमेन ऑफ टुडे, लाइक जो मेरी एज के हैं, जो अपनी लाइफ बना लिए और कुछ करियर के लिए वो लोग बाहर निकल गए, दैट दे चेंज दिस टाइम. अपने पास ही है पावर. फिर अगर अपन नहीं हैंडल करे तो दूसरे जनरेशन पे ये सेम सोसाइटी के कल्चरल इश्यूज सब जाते हैं. देखिए, इट कम्स बैक टू स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ दिस एंटायर यूनिवर्स वाज मेड. इट वाज मेड इन अ डिवाइन बैलेंस. लेट्स गो बैक टू ओल्डन टाइम्स व्हेन गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन. व्हाई मैन हैड, अब हमारे जो कल्चर से, मतलब कल्चर नहीं, हमारे रिलीजन से जो बताया गया, दैट आदम अलैहिस्सलाम was feeling lonely in the heavens. It was made like बहुत अच्छा heaven है, heavenly place है, but still he was feeling lonely over there. Imagine if you keep a woman in heaven, no, she will not feel the need of a man. Why do you say that? Why I say that is, औरतों को आप बोलो क्या चाहिए? औरतों को चाहिए बहुत रहने के लिए सुकून की जगह और एक मोहब्बत करने वाला, जो कि अल्लाह ताला है वहाँ पे. अल्लाह ताला मोहब्बत करेंगे, फरिश्ते हैं, खादिम हैं, खाने के लिए सब है. तो औरत, एंड देन जो बोली वो हो जाता वहाँ पे. तो औरत क्यों वो नीड महसूस करेंगी? औरत नहीं महसूस करती है नीड. आई एम अ सिंगल वुमन एंड नाउ आई हैव कम टू टर्म्स दैट जब मैं इतना सब कर ले रही हूँ और अल्लाह मेरे को थाम लिए, तो मेरे को ये नीड नहीं पड़ रही आदमी की. सब अल्लाह देख ले रहे मेरे लिए. बट मैन के अंदर ही अल्लाह ऐसा बनाए कि यू विल नीड अ वुमन. आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री मैम, अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. उनके कोई दुबई के शेख है, उनके 4 वाइफ्स है और उन्होंने सबको अलग अलग एक विलास में वगैरह रखे. तो उनके वाइफ से भी इंटरव्यू चल रहा था. उनके वाइफ बता रहे हैं कि आई डो नॉट माइंड, मेरे पास सब है, मेरे घर में क्या है, स्विमिंग पूल है, खाने के लिए कुक आते आ जाते, सब आ जाता, तो आई डो नॉट माइंड अगर कहीं भी टाइम स्पेंड करो, मेरे को मेरा रिहाइश है, सुकून है मेरे को. एग्जैक्टली. स्ट्रेंज. अरे भाई तुम्हारा हस्बैंड है, उसको फर्क नहीं पड़ता. When a woman becomes emotionally mature, no, that's when she'll realize the real thing that she needs. कि मैन को क्या प्रोवाइड. आप कुरान उठा के देख लीजिए, सूर्य रिजाल नहीं आया, सूर्य निसा आया, और उसमें बताया जा रहा कि टेक केयर ऑफ हर इन दिस वे, ये मत करो, वो मत करो. और आज पूरी सोसाइटी उसका उल्टा कर रही. दहेज आदमियाँ ले रहे, पैसे हमारी बेटी से शादी कर लो, बल्कि मतलब बच्ची के मम्मियाँ पापायाँ पीछे पीछे फिर रहे, जबकि नहीं है वैसा. मैन वॉज क्रिएटेड विद द वॉइड, वुमेन वॉज नॉट क्रिएटेड विद द वॉइड.
ओके तो बैक टू द आदम अलैहिस्सलाम स्टोरी. यस, बैक टू दैट स्टोरी. तो जब उन्होंने लोनली महसूस करे, अल्लाह ताला उन्हीं की रिब से औरत बनाए. एंड रिब इज लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, like this. And what is the rib protecting? Heart. The heart, the lungs, the major organs. Somewhere here the liver, major organs को protect कर रहे. If the rib was like this, could it protect it? नहीं. समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह ताला जब ऐसा बनाए तो उसका नेचर है वो. अल्लाह समझा दिए भी मैं क्यों ऐसा बनाया. अगर मैं ऐसा नहीं बनाता तो तुम्हारी बॉडी जो शेप में है वैसी नहीं रहती. सो रिस्पेक्ट हर हाउ एवर शी इज. ये एक तरीके से समझा दिए. बट पूरे मेरे को ऐसा लगता है कि आज के दौर में वो उसको सीधी करने में ही लगे हुए हैं. तोड़ ले रहे आप उसको, आप रिब को सीधी कैसा करते हैं, ऐसा करने जा रहे तो यहाँ से टूट जाती वो टूट जा रही. और ये टर्म्स बता दिया गया था. इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. क्योंकि स्कूल में सारे एजुकेशन जो भी पढ़ा रहे कर रहे, क्या पढ़ा रहे इन टूडेज टाइम? ABCD, Hindi, maths, Telugu, science and other languages. But are they teaching mutual respect for two genders, which are the main genders? Yeah. Does the man gender know that you have to respect the female gender in this way? Iske emotions ऐसे हैं, this is how it works. When you drive a car or you buy an animal, खाली एक animal ही सोच लो आप, तो आप 10 बार पूछते जिसके पास से आप खरीद रहे कि इसको क्या खाना डालूं, इसको कैसा रखूं, ये कौन सी ब्रीड का है, इसको कैसा मैं देखूं, अगर कुछ हो गया तो इसको सर्दी लगती नहीं लगती, इसको कौन से शेड में रखूं, लाइक डज इट नीड अ बिगर प्लेस, डज इट नीड अ स्मॉलर प्लेस. एक एनिमल को ले रहे तो समझ रहे आप. औरत को जब घर लेके आ रहे तो इसको बोल रहे उन्हें कौन सी ब्रीड की है, क्या है, उसकी सोच कैसी है, कुछ भी नहीं सोचते. इधर एडजस्ट हो. समझ रहा है. तो ये चीज़ बहुत हैवॉक क्रिएट करे, बिकॉज मैन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक लाइव और एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मेरे को इसकी इज्जत करके रखना है. ना अबाउट द एग्जांपल यू गिव के रिब टेढ़ी है, उसको आप सीधा करने में लग जाएंगे वो तो टूट जा रही हो जी. व्हाट डज दैट इवन मीन इन रियल वर्ल्ड सोसाइटी? यहाँ पे क्या हो रहा, कैसा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं? फर्स्टली ये टेढ़ा है कैसा, और उसको सीधा करने की कोशिश में जो तोड़ रहे हैं वो क्या हो रहा है आखिर? अगर आप उसको डिटेल में बता सकें. मैं समझाती हूँ. इट कम्स बैक टू अंडरस्टैंडिंग हाउ अल्लाह क्रिएटेड अ मैन एंड हाउ अल्लाह क्रिएटेड अ वुमन. मैन इज सपोज टू बी लाइक द सन. If you understand the universe and everything, sun does not move, but every day it comes out on time. It gives light no matter what. आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, जंगली झाड़ हो, अच्छा झाड़ हो, सबको अपनी रोशनी दे रहा. And the woman is the moon. The moon. What does the moon do? It takes light from the sun. जो सन की लाइट उन्हें ले सकता तभी उन्हें रात में शाइन करेगा. उसका भी एक रोल है, इसका भी एक रोल है. सो द मैन हैज़ द सोलार मतलब सन पावर, लाइक अ बर्निंग पावर विच इज़ अ वेरी फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग पावर, एंड इट गिव्स लाइफ टू एवरीवन. मैन कंजूसी, अगर किसी दिन सन बोल दिया मैं नहीं निकलता, सन का वो मून जो है सो ना, क्या बोलते हैं आप उसको, नो मून कर ली तो मैं भी नहीं निकलता. What is that? You understanding? ये थोड़े हो रहे बचपन के चीज़ें हो जा रहे. ये क्यों भी हो रहे? मदर्स नहीं ट्रीट कर सक रहे अपने बच्चों को सही से, सही गाइडेंस नहीं दे रहे अपने बेटों को. they are asking their sons to become the moon and they are asking the daughters to become the sun. When the moon was not made to give light, how will it become the sun? And when the sun was meant to burn, how will it become the moon? How are mothers training their sons to become moon? In what way? They are giving the men feminine thoughts. जैसे कि अब मैं बोलती हूँ आपको, कहीं ना हर चीज़ का जो डिवाइन बैलेंस ब्रेक हो रहा, एक तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ लव. लव इज़ सच अ पावरफुल थिंग कि हर चीज़ में, अब आप देखिए, आप किसी से भी मोहब्बत करते ना तो आप उससे बहुत प्यार से उसको लेके चलते, उसके पूरे टर्म समझने की कोशिश करते. बट मोहब्बत का ही नाम ही बहुत अलग हो गया. मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग का नाम है, देने का जज्बा है. और इट्स नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ जज्बा कि सेल्फिश हो जाता है, तुम मेरे को वापस नहीं दिए. दिस इज नॉट लव, दिस इज टिट फॉर टैट. ठीक है, ट्रांजैक्शन है वो. हाँ, अभी जो चल रहा है बहुत ट्रांजैक्शनल हो गया. दैट इज लव डज नॉट, मेरे हिसाब से अभी के दौर में शायद लव डज नॉट एग्जिस्ट. दे माइट बी पीपल हु आर फिल्ड विद लव बट दे आर ट्रैप्ड विद इन देमसेल्व्स. ठीक है, उनको सही तरीके से मोहब्बत कैसा करते नहीं मालूम. एवरीबडी इज
slave to their ego, because the devil is making them. And trust me, the enemy is not man and woman. The enemy is the devil. You have to unite to fight the devil. Because when the creation was made, and I think in every religion people will agree, the devil is the enemy of mankind. So he will do something. मतलब हमको समझ नहीं आ रहा, but it is time to understand his tactics. And the devil was not sent for just a particular religion. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए है वो, पूरी ह्यूमैनिटी से उन्हें नफरत करता. अग्रीड. कोई भी रिलीजन के आप रहने दो, कहीं भी ही वांट्स हैवक. बिकॉज ऐसा नहीं है कि खाली हमारे रिलीजन में वो सारी चीजें हो रही, सबके पास ये चीजें हो रही हैं. एंड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? घर से. बिकॉज वे ऑफ लिविंग स्टार्ट्स इन अ होम. समझे आप? The world was made and then Adam and Eve were sent, and that's where क्या बोलते हैं, the life started on earth, right? तो उसके चीज़ों में क्या है समझ में आने का अपने को कि घर सही रहना. घर सही नहीं रहा तो शैतान आता, बहकावा डालता, तोड़ देता. Because Adam was also like someone who lived in the heavens and he had the highest knowledges, I feel, क्योंकि उन्होंने देखे हुए हैं heavens. But still he could not, train his children from, save his children from the whispers of the devil. समझे आप? Yeah. So we all have to have, मतलब parents can also teach. Even if you have righteous parents and they have taught you good things, but devil का whisper इतना strong रहता है that it will make you do bad things. But it is up to you to आपको एक्सेप्ट करना है वो विस्पर या नहीं एक्सेप्ट करना है. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू गेट इनटू, बट वेरी स्ट्रेंज थिंग मैम, दैट इज कि घर में कोई बच्चा है, कोई लड़का है, अपने कपड़े खुद धो ले रहा, अपने बर्तन वगैरह साफ कर ले रहा, तो उसको बोलते अरे इसके लिए एक बीवी लाना पड़ता, बल्कि बोल रहे नहीं है. बर्तन धो रहा, कपड़े धो रहा, तो बीवी क्यों लाना है? क्यों लाना है? मेरा भी ये क्वेश्चन है आजकल. तो बीवी आके बर्तन धोने के लिए ला रहे आप. क्या है? नहीं है वो. आप समझने की कोशिश करिए. आप हर लड़की घर संभाल नहीं सकती ना. बोलिए आप. अगर ऐसा ही है तो मेरा ये मशवरा रहेगा कि जो गर्ल्स के माँ बाप हैं, मत पढ़ाइए अपनी बच्ची को. क्यों भेज रहे स्कूल? अल्टीमेटली आप डॉक्टर, मेरे पास ऐसे बच्चे आते, दे क्राई एंड दे से ऑन शादी डे एंड आई हैव टू गिव देम थेरेपी. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप परेशान मत हो, आप अच्छे से बात करो, आप कॉन्फिडेंट है. कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहे माँ बाप. व्हाट डू दे से मैम? शादी के दिन वो लोग रेजिस्ट करें शादी से? अंदर अंदर थॉट्स चलते रहते बच्चियों के, और उनको वेंट आउट, अपने घर में वेंट आउट नहीं कर पा रहे वो लोग. व्हाट आर द थॉट्स? द थॉट, देखिए हर बच्ची के नहीं रहते, बट बहुत सारे बच्चियों के रहते. I'll give you a small example. मेरे पास एक बच्ची आई थी, she has gone through like her parents had a past, तो अब उसकी शादी का टाइम था, and she hated her father. उनको उनके पापा नहीं पसंद आ रहे थे, बिकॉज उनके पापा बेसिकली उनको ये फील हो रहा कि ज़बरदस्ती करते जा रहे. आई वॉन्ट टू फिनिश माई स्टडीज़ बट माई फादर इज़ एडमेंट ऑन गेटिंग मी मैरिड. और मैं बहुत जिद से बोली कि अब मेरे को पढ़ना है, मैं ये बोली, मैं वो बोली. तो देन आई हैड टू काम हर डाउन. शी केम इन सच अ बैड मूड. आई वॉज लाइक क्या हुआ, क्यों ऐसा? आप कर दीजिए मेकअप, जो भी करना है. तो आई वॉज लाइक क्यों बेटे, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? देन I don't know, by the will of God, she opened up to me, and then I was able to explain certain things. Just because she had that trauma in the back of her head that her father didn't treat her mother well, so why should I get married and all that stuff. एक एग्जाम्पल सेट करा हुआ है घर में. Exactly. अब ये मेरे माँ जो चीज़ से गुजरी हुई है वो मेरे को नहीं गुजरना है. क्यों गुजार रहे? मैं पहले कुछ बन जाती हूँ, कुछ काबिल बनती हूँ. बट देन आई आस्क्ड हर कि आपके होने वाले हस्बैंड कैसे हैं. शी सेड मैं उनके साथ जिद करी, मैं ऐसा एंगर इश्यूज़ भी है, तो उन्होंने मेरे को जान दो बल्कि लेके चल रहे, बहुत सब्र करे, वो करे, बट मैं क्या करूँ, मेरे को तो पढ़ना था. ये सारी टॉपिक्स शी सेड बिकॉज ऑफ द फियर इन द बैक ऑफ हर हेड. अच्छा इंसान भी उसको हैबत दिला दे रहा. तो मेरे को बिठा के मैं कितनी के टाइम तक ये समझाई कि देखिए आप कुछ जर्नलिस्ट बन जाते, जो भी बनना है, आप कुछ अच्छा बन जाते, उसके बाद क्या करते हैं आप? शादी करते हो, करना रहता ना. तो ऐसे हाँ, तो अल्लाह ताला आपके लिए एक ऐसा बनाए होंगे कि आपकी पहली हो जा रही होंगी, एंड मे बी यू आर वेल फिटेड हियर. बिकॉज देखिए आई कैन नॉट ब्रेक इट, बिकॉज मैरिजेस आर सपोज टू हैपन, दे आर एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑन अर्थ, बट दे हैव टू हैपन इन हार्मनी, नॉट हैवक. डर से, हैबत से नहीं हो सकती. तो जो भी डर है वगैरह है, पहले सॉल्व करना चाहिए.
एंड आई फील सो बैड देन उसका मूड कैसा था, फिर उन्होंने कैसा गई वो, फिर मैं खुद अल्लाह का शुक्र अदा करी कि आई वॉज एबल टू एटलीस्ट डाइवर्ट हर माइंड इन अ सर्टन वे, एंड आई प्रेड कि अल्लाह अब इसकी शादी अच्छे से चलना. तो मैं समझाई उसको कि टेल मी व्हाट इफ आफ्टर यू बिकम अ जर्नलिस्ट एंड एवरीथिंग यू डोंट फाइंड अ रिश्ता एज गुड एज दिस पर्सन, मे बी तुम्हारे नसीब में यही इंसान लिखा हुआ है, तो व्हाट इफ. तो शी सेड फॉर अ मोमेंट यू नो पॉज हो गए. जो एंगर वगैरह जहाँ जहाँ से आ रहा था, बिकॉज इट वॉज इन द पास्ट, जो उनके फादर थे उन्होंने वही तस्वुर कर रहे अपने हस्बैंड को. तो अगर ऐसा नहीं मिला तो उन्होंने क्या करे. मैं समवन हैड टू एक्सप्लेन हर दैट द मैन इज अ गुड मैन. ओके, ऐसे भी स्टोरीज है. देन शी रियलाइज एंड देन शी सेड आई शादी होने वाली है, उनसे लड़के आए, मैं नहीं कर लेती हूँ, मैं ये नहीं सुनती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ. तो मैं बोली क्या मिल ले रहा उनसे लड़के जो आपका साथ देने आ रहे, आप उनसे लड़के वो नया घर में जाके क्या ही मिल रहा. मे बी दे विल लव यू मोर देन, उनका तो बैलेंस्ड घर आना दिख रहा ना, तो मे बी दे विल लव यू मोर. वाई आर यू थिंकिंग नेगेटिव, गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. जब तुम इतना लड़ लिए बच्चे से, फिर भी उन्होंने तुम्हारी इज्जत बचना, मैं तोड़ दिया एकदम रिश्ता तो अच्छा नहीं दिखता, सोसाइटी में बात हो जाती. तो इज्जत सी मेन चीज़ आप ये देखो, बच्चा इज्जत बचाना चाह रहा आपकी, और यही चीज़ से शादी करना चाहिए. क्यों हम बच्ची को देते किसी और आदमी के पास, बिकॉज उसको प्रोटेक्ट करो, उसकी मतलब ढाल तो मैन को ही बनना है ना. तो व्हेन ही इज गिविंग यू रिस्पेक्ट, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव. मोहब्बत वो फ्लावर्स एंड ऑल नहीं हुए होंगे आपको अभी वो रोमांटिक मोड, क्योंकि वुमेन इज इमोशनल भाई. तो वो मोड में जाती हूँ, मगर उसको एक सेफ प्लेस होना पड़ता है. उसको हेवन बना के दिए तो वो रोमांटिक होती, नहीं तो नहीं होती. शक करते रहती, इरिटेट होते रहती. बट आसपास के लोग कैसे हैं मालूम, पूरे सोसाइटी में शादी में सबको आना है, बट जब एक वो दुल्हन को भी सजाना है, सब करना है, बट उसके ख्यालात को, उसके दिल को नहीं संभालना है. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर से शुरू होती है ना, कि घर में एक्सप्लेन क्यों एजुकेशन नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको ही नहीं मिली. समझ रहे हैं आप, उन्होंने खुद कल्चर के मारे हैं. मैं देयर वर थिंग्स दैट आई वेंट थ्रू इन माय ओन लाइफ. मेरी खुद की स्टोरी अगर पता चली तो इट इज़ वेरी बिग हैवक. मैं वो बैकग्राउंड से आते हुए, मैं अपने आप को ठीक करते हुए मैं ये बात बोल रही हूँ, तो मतलब इट इज़ अ वेरी बिग मैसेज कि समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स करें उनको माफ़ करना भी ज़रूरी है अब. एंड वो अवेयरनेस, वो अवेकनिंग आजकल की औरतों में आ रही. बिकॉज आप देखिए बहुत सारे बच्चियां हैं जिसके ऊपर बाप जुल्म कर रहे और शौहर जुल्म कर रहे, सास जुल्म कर रहे. उसके बाद उन लोग कैसे हो जा रहे, बस भाई 4 पैसों के लिए इतना मत इरिटेट कर दो आप हम लोगों को, कहीं भी चले जाती हूँ मैं, भीख मांग लेती हूँ. ऐसे भी बच्चे हैं. बिकॉज दिस वॉज माई कंडीशन व्हेन आई लेफ्ट. मेरे साथ जो हुआ था. एंड आई वॉज 16 years old व्हेन आई गॉट मैरिड. 18 years में मेरा डिवोर्स हो गया. 18 years विद अ न्यू बॉर्न गर्ल. एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी खुद की फैमिली में हुआ था मेरा रिश्ता. Were you mature enough to understand what was happening with you when you were 16 years old? I don't think so. Because tell me, how can a person who just finished school, college and everything and who has never seen, मैं मेरे माँ बाप की टूटी फूटी मैरिज के अलावा बाहर कोई खुशहाल मैरिज देखी ही नहीं. जो भी थोड़ी बहुत खुशहाल थी वो मेरे मामा मामी की थी. बट मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी बिकॉज अ चाइल्ड एक्चुअली रिलेट्स टू द पेरेंट्स. नहीं कर सकते, मतलब ना कौन पेरेंट्स वगैरह, पेरेंट्स को ही देखते. समझ रहे आप, वो उनको अल्लाह ताला नेचुरली किसको पैदा हुए, हम वो पेरेंट्स को पैदा हुए तो नेचुरली वही बॉन्ड रहता. आप बाहर कितने भी लोगों के खुशहाल देख लो, आपके ऊपर जो गुजरी आपके अंदर वही डर रह जाता. तो एक तो मैं समझती नहीं थी. एंड देन शादी को कैसे लेके चलना है, क्या करना है, मेरे को भी उतना आइडिया नहीं था. बट एट द सेम टाइम आई वॉज wishing that my husband would be a very strong figure. My husband was a good man. I will not say that he was a bad person or anything. But the minute उनके मम्मी कुछ भी बोलते हैं ना, जैसा उनकी मम्मी, if उनके मम्मी बोले कि मैं अच्छी हूँ तो he will be nice to me. उनके मम्मी बोले आज इन्हों बुरी है, आज ये नहीं करी वो नहीं करी, he will stop talking to me. तो उनके अंदर मेरे हिसाब से, मैं थी होंगी छोटी, मैं जैसी भी थी, लेके चलने की जिम्मेदारी उनकी थी. समझ रहे आप. Expecting a 16-year-old girl to understand these complex emotions बहुत बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से. तो
लोग ऐसे बोल रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई शोड अ लॉट ऑफ समझदारी. आप यकीन नहीं मानेंगे, बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रॉमाज एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, वुमेन हैव बिकम मोर, थोड़ा सेंसिबल हो गए. मैन आर अ लिटिल इमेच्योर, आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट एनीबडी हियर, बट हो गए इमेच्योर. क्योंकि शुरू से जब हम बच्चियां पैदा हो रहे तो अगले घर में जाना है, ऐसा करे, उठे ऐसा, बैठे वैसा, ऐसे क्यों करे, वो क्यों करे, ऐसा क्यों, अपनी मदर्स, ससुराल के घर में जाके क्या करेंगे, ये भी है. फिर अपनी माएँ कैसी हो जा रही, पूरा प्रेशर हमारे ऊपर डाल दे रहे, नहीं पढ़ो भी अच्छा, मार्क्स भी अच्छे लाओ, ये भी अच्छा करो, फिर पूरी ख़ानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में. एंड एट द सेम वो सेम मदर बेटों को कैसा रख रहे, मेरा बेटा है, जान दो उसको, अपने वक्त पे कर लेता, नको नको सो रहा, उसको इतना केयर ज्यादा दे रहे. जबकि आप men were made to go and fight wars, no, not women. वो बच्चे के ऊपर प्रेशर डालो, क्योंकि आगे जाके उसको सोसाइटी को लीड करना है. पुराने ज़माने में क्या होता था, छोटे छोटे कबीले रहते थे, वुमेन वर इनसाइड द कबीलास, डेली मैन उठना, वो क्या बोलते हैं आप, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखना, आयरन के वो बनाना, एंड डेली वो कबीले के अतराफ वो लोग क्या बोलते हैं, पहरा लगाना, दुश्मन आ जाए दुश्मन से लड़ना, कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए उनसे लड़ना. एंड द वुमेन दे यूज्ड टू फील सेफ इन दैट, क्योंकि हमारे कबीले के सरदार हैं, हमारे कबीले के जो लोग हैं वो लोग बाहर हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ. एंड ये जो बिजनेस के लिए भी थोड़े चीज़ें आती आजकल की, औरत घर में बैठना, बट ट्रस्ट मी, औरतें ही रहती थी जो मिलजुल के कार्पेट्स वीव करते थे, मिल के करना पड़ता था, अकेले नहीं कर सकते थे. वे फ्री टाइम में पूरे जुड़ जाते थे वही कबीले के लोग, कारपेट्स जो वीव करते वो करते थे, और कपड़ा बुनाई करते थे, एक आध टेलर रहते थे जो एक स्किल रहता था औरतों में, और कई उसमें से तो डॉक्टर्स हीलर्स रहते थे, एंड जड़ी बूटियों से जो करना रहता था. और पकवान भी ऐसा होता था ना, तो कुछ खेमे वाले ना मिल के भी कर लेते थे, सो दैट द अदर पर्सन डज नॉट गो हंग्री. तो औरतें ये काम कर लेते थे, और ये बना के दे वुड गिव इट टू द मेन, गो सेल इट. तो ये लोग दूसरे शहरों को जाते थे, सेल करते थे वो आइटम, दे यूज्ड टू कम बैक एंड देन दे यूज्ड टू गिव दैट शेयर ऑफ मनी इक्वली टू द वुमेन. बैलेंस्ड सिस्टम था एग्जैक्टली. ये चीज़ें बहुत अच्छी थी. आप टर्किश सीरियल्स वगैरह देखे तो, सॉरी, अर्तुगरुल गाजी वगैरह देखे, बहुत सुकून मिलता, और बहुत लोग उससे इम्प्रेस भी हुए. वुमेन आर राइडिंग हॉर्सेस, वुमेन आर डूइंग स्वॉर्ड फाइटिंग, वुमेन आर टॉट, मतलब उनके हस्बैंड सिखा रहे हैं उनको कि ऐसा ऐसा लड़ो, उनके हस्बैंड के साथ खेल रहे हो लोग स्वॉर्ड फाइटिंग एंड ऑल. व्हाई द मैन इज टीचिंग हर ऑल्सो टू बी स्ट्रांग. ये नहीं बोल रहा कि मैं हूं ना, मैं कर लेता हूँ, तुम घर में बैठो खाली दाल खाना पकाओ बोले तो, समझ रहे आप, दे वर इक्वली इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ द मैसेज. अगर कोई दुश्मन आ रहे, कोई आ रहे, तो उनको भी कुछ खबर होती थी ना, दे यूज्ड टू गो एंड टेल देयर लीडर्स. तो एक बहुत अच्छा बैलेंस था, बिकॉज अपने लीडर्स के जैसा बिहेव कर रहे थे, तो वाई शुड वुमेन ट्राई टू बिहेव लाइक लीडर्स. तो अब कैसा हो गया, पूरा प्रेशर बच्ची पे डाल देते रहे, उसको जो है सो इमोशनली पूरा उन्हें एग्जॉस्ट हो जा रही, उसके उन्हें वही माँ को देख रही, इवन आई नीड लव, दैट मदर इज़ नॉट गिविंग मी लव, एंड उनको कर रहे. आप सोचिए, पहले औरतें बेटा पैदा होते कि क्या बोलते थे, छोटे बच्चे, मैं इनके जैसा, आई विल बिकम दिस स्ट्रॉन्ग वॉरियर, आई विल बिकम दिस दैट. अब क्या हो गया, अल्लाह दर्द हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. भाई ट्रस्ट मी, आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज. बहुत ज्यादा पैम्पर करे हुए, बहुत पैम्पर हो जा रहे हैं, हो गए. एंड you see, I'm not able to comprehend how this is functioning in our society, or it still exists in our society, but it does. दोनों भी हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं फिनेंसेस के लिए. हस्बैंड भी काम कर रहा, वाइफ भी काम कर रहा, कॉर्पोरेट में दोनों भी काम करके हस्बैंड वापस आ जा रहा, औरत काम करके घर को वापस आ रही, खाना पका रही, दूसरे घर के काम कर रही, फिर सो रही. ये एडिशन है उसके ऊपर. मैं यही पूछना चाह रही हूँ, बोलेंगी पैसे भी मैं कमा रही हूँ, घर का काम भी मैं करूँ, कई को कर ली इसे शादी में. और एक भी चीज बोलती हूँ, बच्चे भी मैं पैदा कर रही हूँ, वो बच्चों को भी देखना है, फिर बच्चों को भी देखना है फिर. और बच्चों को पैदा करना क्या छोटा मोटा टास्क है, समझ रहे हैं आप, कितने की बोन्स टूटे जैसा दर्द होता. तो वो हम कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते. बट अल्लाह ताला वो टाइम कैसा दिलासा दे देते नहीं समझ आता. बट मरने की दुआएं भी करते औरतें, उतनी तकलीफ. ओके, और किसके लिए पैदा कर रहे हैं? पीपल आर लाइक, तुम्हारे को होना था, तुम पैदा कर. व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड.
क्यों पैदा कर, क्या वो बच्चे वो पापा की खिदमत नहीं करेंगे, क्या वो बच्चे आगे कुछ बन गए तो उनका नाम रोशन नहीं करेंगे, खाली वो औरत के बच्चे है, वो एक टीम है वो। एग्जैक्टली वो टीम के जैसा नहीं बिहेव कर रहे, स्पेशली अपनी थोड़ा हैदराबाद की सोसाइटी बहुत, इट्स हाई टाइम दे अवेकन। एंड एक बात बोलती हूँ मैं आपको, फिजिकल प्रेशर हैंडल करने का कैपेबिलिटी आदमियों को दिया गया बाय गॉड्स डिज़ाइन, एंड इमोशनल एंड थोड़ा लव गिविंग वाला और मेकिंग पीपल फील सेफ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत को दी गई, क्योंकि बच्चों को एक रहता है थोड़ा नर्चर होने के लिए एक सेफ प्लेस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरत के ऊपर ही डबल हो गई ना, उन्हें नर्चर भी करो बोल रहे, हाउ कैन शी यू नो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन ट्रेट्स आ जा रहे औरतों में, क्यों आ रहे, क्योंकि वो बच्चे नहीं उठा रहे ना वो जिम्मेदारी, कोई तो गैप फिल करना है तो औरतें ही फिल कर ले रहे वो, और वो फिल करने से क्या हो जा रहा, सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा, एंड नहीं कर पा रहे कोई भी अंडरस्टैंड कि ये क्या हो जा रहा। सो आई विल टेल यू दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, अगर कोई डिसएग्री कर रहे हैं तो कर भी सकते हैं, आई डोंट नो, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक पंचिंग बैग है बेसिकली, बीन बैग जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस है, गुस्से में आए, घर पे आए, निकाल दो, पुकारा करना है इनके ऊपर कर लो, जो भी है, लेडीज़ के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर, पंचिंग बैग है, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं है ना उनके पास, डिवोर्स इतना आसान काम भी नहीं है, तो पूरा स्ट्रेस वगैरह जो भी है उनके ऊपर निकाल लो, और बाद में माफ़ी मांग लेंगे, क्या होने का है, नथिंग मोर देन दैट इज़ व्हाट आई फील, कि अभी सोसाइटी में पनप रहा है, लोग है ऐसे। व्हाट डू यू थिंक मैम? पनप रहा बोल रहे, ये थ्राइव हो रहा है, थ्राइव हो रहा, इट्स हैप्पीली लिविंग। हाँ शोहर मदर्स ऑफ द सच का साथ नहीं दे रहे ना, और लोग ये बोलना शुरू कर लिए कि हम तो मुसलमान हैं, ये है वो है। इफ़ यू आर कॉलिंग योर सेल्फ अ मुस्लिम और अ मोमिन और वॉट एवर, तुम पर्दा नहीं करे, ये नहीं करे, पूरे रूल्स औरत के लिए, बट कोई भी रूल आदमी के लिए नहीं, क्यों नहीं बना रहे, और कौन कर रही है? आई एम गोइंग टू कम बैक टू वुमेन ओनली, बिकॉज द वुमेन आर ओनली कल्प्रिट्स, फ्लैग बेयरर्स, एग्जैक्टली, दे आर ओनली द कल्प्रिट्स। क्यों क्या हो रहा, मैं वो भी समझा देना चाह रही हूँ, आज एक्सप्लेन हो जाना ये चीज, ऑपरेशन हो जाना है एग्जैक्टली, क्योंकि बस somebody has to say stop it, we have to change now. So if it was a woman who created a little more havoc than men, then I think it's a woman who has to agree and who has to come to terms and then change the society as well. Why is it difficult for mothers of son to understand कि उनकी शादी हो गई तो अब उन लोग एक टीम हो गए, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर, अब क्यों समझ नहीं पा रहे? लैक ऑफ मैच्योरिटी, सास भी बन गए, सब बन गए, 50-60 साल के बाद भी मैच्योरिटी नहीं आई। लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत नेसेसरी है वुमेन में एजुकेट होना। यही चीज़ से आप, अगर औरतें बिजनेस भी कर रही ना, अगर किसी औरत का बिजनेस नहीं भी चल रहा ना, तो यही रीजंस है। इफ़ शी इज़ क्रिएटिंग हैवक, बिजनेस फील्ड में भी आ गए, okay, very good, that's really nice, but if you're coming with the same mindset as your mother, या फिर like a mother-in-law, बेचारे हर mother-in-law बुरे नहीं रहते, I know. but that old mindset, तो आप कहीं भी हैवक क्रिएट करते हैं, because you have not processed it। और कैसा रहता, इमोशनल इंसान है ना, बहुत जल्दी अटैक करता डेविल, हाँ देखें ऐसा करे वैसा करे, और हम है ही इमोशनल। आई हैव टू अग्री, बिकॉज आई वॉज मेड थ्रू गॉड्स डिज़ाइन एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम, और मेरे को समझना है। सडन उन्होंने डाल दिया, उन्होंने अच्छी दिख रही, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ अल्लाह ताला उनको अच्छा बनाए माशाल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ वाई शी लुकिंग गुड, इन्हें कहीं को अच्छी दिख रही, इन्हें कहीं को खुश है, इसकी ज़िंदगी कहीं को खुश ही नहीं हो सक रहे। ये है यू नो, यहाँ से रूट स्टार्ट हो रही, वो आप नार्सिसिज्म बोल रहे हैं ना, यहाँ से। वाई दे हैव ऑल मटीरियलिस्टिक। देखिए आदमियों को ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, आदमियों को औरत ही चाहिए इन दी एंड, बट मटीरियलिज्म किसको चाहिए? लेडीज़ को। और वो बने हुए भी हैं, क्यों? बिकॉज अल्लाह खुद बोले ना कि दे नीड अ नाइस हाउस टू सर्वाइव इन, दे नीड दैट फूड, चाहते हैं वो लोग, प्रोटेक्शन एंड अ प्लेस वेयर शी विल फील सेफ। हाँ भाई ये मेरा घर है, ये मेरा ये है, मैं मेरे बच्चों को देखना हूँ, ये है एंड ऑल दोज मटीरियल थिंग्स की ज़्यादा ख्वाहिश औरतों में है।
आई वॉज ऑल्सो क्या बोलते हैं कल्प्रिट टू दिस, क्योंकि मैं भी जब पल रही हूँ थी, बढ़ रही हूँ थी, देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, आप नीचा दिखा दे रहे। लेट पीपल से एक रहता किसी के दिल में वो ख्वाहिश नहीं भी रही ना, तो उसको नीचा दिखा के बहुत हर्ट कर रहे। ये औरतों के अंदर ज़्यादा है। आई डोंट थिंक मैन हर बार नीचा दिखाते एक दूसरे को, कहीं ना कहीं हाँ भाई जी भाई सलाम भी कर लेते, वो नहीं कर लेते, एकदम ही जलील नहीं करते, बट एक ब्रांड की चीज़ पकड़ के पूरी की पूरी सामने वाली इंसानियत को क्रश कर दे रहे। समझ रहे आप? दैट इज नॉट इमोशनल मैच्योरिटी। एक स्टडी है मैम, वो बहुत में इतनी हंसी आई थी वो पढ़ के, मैं पहले तो यकीन नहीं करा ये ऐसा एग्जिस्ट करती बोल के। लेडीज़ में कल्चर मेरे को नहीं मालूम ये एग्जिस्ट करता, आप बताओ ये करता है नहीं करता। लेडीज़ में कैसा है, एक बहुत ही शुगर कोट करके इंसल्ट करते, जैसे कि जी अच्छा वो आप ड्रेस पहने, अच्छा ये इतना वेट रख के मैं तो नहीं पहनती थी मगर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पता कॉन्फिडेंस वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, समझ रहे हैं आप? अच्छा वो पहने, अच्छा नहीं वो कलर की, अगर मैं तुम्हारी जगह रहती वो कलर की जमती नहीं थी मेरे को, मगर तुम पहने तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वाकई में बहुत ज़बरदस्त। वेरी ट्रू। देखिए कपड़े पे लपट के मार रहे ना। देखिए वो चीज़ गिफ्टेड है औरतों को, अच्छा मगर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आपको मैं एक भी बात बोलती हूँ कि ये जो चीज़ थी, इट वाज टू हेल्प मेन अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग और समथिंग, बिकॉज यू नो मेन अंडरस्टैंड थिंग्स व्हेन अ वुमन शुगर कोट्स इट फॉर देम, ओके, बट आप उसको इतना बुरे वे में ले लेके चले जा रहे, और औरत के साथ तो अच्छी रह सकती ना, क्यों बुरी रह रही? और कुरान में ये तो चीज़ लिखी हुई है कि गैर मर्द से बहुत थोड़ा कड़क आवाज़ में बात करो, थोड़ा डोंट गिव हिम हिंट्स और समथिंग लाइक दैट, डोंट बी फ्लर्टी और वट एवर। बट औरतों के साथ क्या बोले, एक दूसरे मतलब अच्छा रहो ना, बिकॉज यू नीड ईच अदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप देखिए जब एक बेबी बॉर्न होता, माँ तो तकलीफ में रहती, तो एक खाला, ग्रैंड मदर, इन लोग वो छोटी बेबी को संभालते। क्यों? इट वॉज डिजाइन लाइक दिस कि साथ साथ ही रहो, ऐसा रिश्तों में दरार करना बोल के है भी नहीं। बट शैतान इतना एक दूसरे के दिल में डाल दे रहा। सी देयर इज अ स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहि सलाम आल्सो वेयर द ब्रदर्स गॉट जेलस, बट इट इज इन अगेन इन आवर हैंड्स ओनली। क्यों स्टोरी अल्लाह ताला सुना रहे? कि अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड जेलसी एंड सर्टेन थिंग्स, इफ यू फील दैट पीपल विल एनवी यू, ओके हाइड इट। तो अब सोशल मीडिया का दौर ऐसा हो गया कि आप ज़्यादा कुछ हाइड भी हो रहा नहीं, समझ रहे आप? इवन मी पर्सनली आई ट्राई टू हाइड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट देन आई हैव टू लिव माई लाइफ, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ द डेविल। एक दूसरे का देख के जल लो। तो अब अपना काम है कि ओके दैट इमोशन इज कमिंग, द डेविल इज थ्रोइंग एन अटैक, और वाई द डेविल थ्रोज अटैक ऑन वुमेन ओनली, ये भी बहुत फैसिनेटिंग बात रही। इमोशनली चार्ज रहते, इमोशनली चार्ज क्यों भी रहते, और उन्होंने actually women are more powerful than men. Why do you say that? Why I say that? Spiritually बहुत बड़े सेंटर्स रहते, और अल्लाह ताला औरतों की तरफ लीनियंसी ज़्यादा करे हैं, ट्रस्ट मी। मैन हैज़ वन, अब जैसे फ़ोन्स पे बात हो रही वगैरह, जो भी अपन कनेक्ट कर पा रहे, इज़ देयर अ वायर कनेक्टिंग इन बिटवीन? नहीं। हाउ डू वी कनेक्ट टू द यूनिवर्स? देयर आर ऑब्वियसली अदर रेल्म्स, energies. At the same time, there are particles in the air that understand those energies, right? Devil knows about these energies. We have not been taught because हमारे बुक्स में से ये गायब कर दी गई। The school system 100% ये main information गायब कर दी गई, 100%. because I have written in my book as well कि स्पेन में and Baghdad में there were very big educational centers, and people of all religions used to go there just to understand this spirituality, because that was the thing that need to be learnt, because that is something of the unseen. And ये maths, physics, science, what is all this? This is discovering of the universe. जो ऑलरेडी कुछ चीज़ों को लोग बोलते थे मिरेकल, अरे वो सन मिरेकल, they didn't even know the earth was round. So how did they understand all this? They went through the spiritual aspect. ये जो अपने बड़े बड़े स्कॉलर्स रीड इन एनी रिलीजन, दे आर एबल टू से मोर थिंग्स बेटर देन पीपल ऑफ नॉलेज, लाइक एजुकेशन से बुक्स वाले लोग से ज़्यादा वो लोग बहुत सारी चीज़ें बोल देते जो मेडिटेट करते, और उनको एक थर्ड आई ओपन हो जाती है, वो थर्ड आई चाकरा जो बोलते। सो मेन हैव वन जो चाकरा जिसको अपने को ईगो को किल करके एक्टिवेट करना पड़ता है, बट वुमेन दे हैव टू,
वुमेन के पास ये तो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो द पिनियल ग्लैंड जो थर्ड आई ओपन करता, बट एट द सेम टाइम द बिगर पावर टू ब्रिंग द ह्यूमन बीइंग इनटू द यूनिवर्स, दैट इज अशरफुल मखलूक़ात। किसके पास है वो पावर? एंड वहाँ पे सोल उतरती वुमेन inside that womb has to be protected। इसीलिए मैन को बोला गया that is a very big treasure। कोई भी पैदा हो सकते हैं। a very big warrior also needs to be born through a mother's womb। a very big philosopher or great chef, whatever doctor, healer, जो भी दुनिया को जरूरत है, it can come only through the womb of mother। 100%। so the devil knows she is the more powerful, let me destroy her। इसको मैं बहुत ज्यादा अटैक करूंगा। दैट इज वाई मैन आर सेड कि अपने औरतों को प्रोटेक्ट करो। एंड व्हेन शी इज हैविंग दोज मूड स्विंग्स, ये होने का ही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज द वुमन इज नॉट लाइक द सन, डेली 24 आवर क्लॉक नहीं है, मून वाइज है। वन डे शी इज ब्राइट, वन डे शी इज डिम, शी इज लाइक मून क्लॉक। समझ में आ रहा? एंड देन देर आर टाइम्स व्हेन शी बिकम्स नो मून ऑल्सो। शी शोज पीपल देयर मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं चली गई, आई एम डार्क। But the next day the sun comes up or no? Yeah, it does. Then she gets back into her cycle। ये साइकिल समझना भी बहुत जरूरी है। Very logical explanation। Exactly। मैं आपको जो शुरू में सोलार का समझा रही थी, ये है कि एंड ट्रस्ट मी वो भी जरूरी है, बिकॉज शी इन्फ्लुएंसेस द टाइड्स। इमेजिन वुमेन आर मोर फेमिनिन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी इज द फेमिनिन एनर्जी इज मोर रिलेटेड टू द वाटर, अर्थ, मदर अर्थ बोलते हैं। क्यों? पूरी गलाजत ले लेती अपने अंदर, फिर एक झाड़ भी पैदा कर सकती। शी हैज द nature of giving, but tell me, if you over exploit it, she can cause tsunamis, she can cause earthquakes, she can cause turbulences in the wind। so कौन है ये? मदर, फीमेल एनर्जी। तो अब क्या हो गया, अब हरिकेन को ये मैन को बोल रहे संभाला। अब मैन पूरा तमाशा कर दिए, पूरा अर्थ खराब हो गई, अब संभालेंगे। अब क्या बोल रहे, नहीं अच्छी नहीं है, तो उन्हें फ्लेयर अप हो जा रही। तो यू के नॉट, मैं ये बच्चों के कार्टून ज्यादा देखती हूँ, तो एक फेवरेट है मेरा। जी। तो डिज्नी टाइप के भी देखती हूँ मैं, मेरी बेटी देखती रहती, तो मैं भी उसके साथ देखती हूँ। आई ट्राई टू मेक सेंस, कई चीज़ें समझ आ जाती। एक कार्टून है या डिज्नी मूवी है, मोआना करके। सो देयर इज दिस फायरी बिग evil kind of thing, and everybody is scared of her, and there's this girl who's meant to change the world, वो जो ऐसा रहता। तो वो मोआना क्या है, जाके उनको बोलती कि why are you so fiery and all। so she उसके पास से कोई एक चीज़ ले लेते जो नहीं लेना चाहिए था। so she returns that thing to her, that is actually love। The minute she returns that thing and she says, you're not this fiery person, you're not a volcano lava, the minute you give that thing back to her and say कि you're a good person, we are sorry, या फिर ऐसा कुछ ऐसा था वो, she immediately calms down and she becomes into a garden। समझा? Okay। तो she was actually a garden and she was supposed to flourish, but उसके पास से छीना गया, तो अब उन्हें वैसी हो गई, she became a monster बन गया। तो अब people are like, oh she's a monster, but छीना क्या गया वो देखो ना। in all Disney movies the monster is not slain, the monster was created as a deficit of love। समझे आप? उन्हें अच्छी थी मगर उसको बहुत पोक कर दिए, बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर दिए, तो उन्हें मॉन्स्टर बन गई। सब विलन की स्टोरी वही रहती हर मूवी में। एग्जैक्टली। तो अपने को यही बात समझने का है, स्टोरी तो एंजॉय कर रहे, मगर कोई ना, यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। तो हाउ कैन वी अवॉइड दिस? हम क्या कर रहे हैं, पूरा वो मॉन्स्टर बना के उसको जाके ठीक करेंगे। और एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे मॉन्स्टर्स ही हो गए अभी। मॉन्स्टर्स एज इन आई एम ऑल्सो वन, बिकॉज मेरे को भी हर्ट किया गया। माई फादर डिडंट सपोर्ट मी, नो आई हैड नो फाइनेंशियल बैकअप, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और एक बेटी थी। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट माई डॉटर आई बिकेम दिस फियर्स, ऐसे अब कुछ भी हो जाओ मैं बैक डाउन नहीं कर। आई वॉज अ ट्रेम्बलिंग गर्ल। मैं डिवोर्स लेके फिर मैं कॉलेज जाके, फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एट द सेम टाइम। सुबह में कॉलेज जाती थी, रात में काम करना शुरू कर दी थी। और 19 years old? 19 years old, that's when I started doing my career and everything।
एंड आई वॉज लाइक, मेरे तो फैमिली में एवरी वन इज़ लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, उतना वेल एजुकेटेड है. मेरे को भी बनाएंगे बोल रहे थे, बट मैं बोली कि अब मेरे पास वो एनर्जी नहीं रही. बनाना था तो मेरी शादी नहीं करना था और बना देना था. बट जब हो गई एंड नाउ आई हैव अ डॉटर, आई हैव टू अर्न बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. और मेरे पास तो फाइनेंशियल बैकिंग है भी नहीं ना. माई फादर डिडंट कम टू सपोर्ट मी, नो वन. एक मेरी माँ थी जो बस आके मेरे को बचा ली. We'll never be able to understand that, ma'am. No matter how good you explain, I will never be able to understand how can a father leave a daughter in that condition. I will never be able to understand that. मैं ये बोलूँगी कि मे बी ही वॉज ऑल्सो नॉट टॉट हाउ टू टेक केयर ऑफ अ डॉटर. समझे आप? इफ ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ वाइफ, देन हाउ विल ही टेक केयर ऑफ अ Ma'am, डॉटर? don't you think वो innate चीज़ें हैं, वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान पैदा होता है उससे? देखिए, द थिंग इज, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती से ज़्यादा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कम हो गई ना. आप देखिए, एक फादर सेक्लूडेड, बहुत थोड़े 1-2 जनरेशन्स पीछे जाइए. माई ग्रैंड फादर ऑन द डैड साइड, he used to write and everything, but he was very closed with his wife. like मतलब बिल्कुल अच्छी बात नहीं करना, कुछ नहीं. तो सब ये बोलते कि मैं मेरी दादी के जैसी हूँ, बिकॉज उन्होंने इतने स्ट्रांग औरत थे, उतना सब बर्दाश्त करते हुए भी शी टुक केयर ऑफ ऑल हर सन्स एंड शी वॉज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ सो मेनी वुमेन ऑल्सो. इट्स मेरे को नहीं मालूम थी ये बात, बट मेरे अम्मी उनकी तारीफ करते कि उन्होंने बहुत अच्छी औरत थे और उनको खुशी नहीं मिली दुनिया में. एंड शी इवन यूज टू गो एंड से कि घरों में जाके बच्चियों, कोई भी उनके नेबर्स वगैरह में बोलते थे बच्चियों को हुनर आना, बच्चियों को हुनर आना. कुछ भी उन्होंने एजुकेटेड कुछ भी नहीं थे, बट यू नो ये बोलते थे हुनर आ गया तो फिर इज्जत करना पड़ेगा ना, वो मसला है. एग्जैक्टली समझ रहे हैं आप? इज्जत का ही मसला है. दे दो ना भाई, दे के तो देखो. आप अपनी नजरें झुका के तो देखो, कैसी भी होंगी सामने वाली. आप तो इज्जतदार है ना, तो आप इज्जत दे के देखो. उन्होंने नहीं चेंज हुई तो बोलो, बिकॉज मेरी बात लिख के ले लो आप. सामने वाला आदमी औरत को इज्जत दिया और वो औरत उसकी कदर नहीं करी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. कितनी भी बुरी रहने दो. क्यों? नो मैटर व्हाट, द सन एनर्जी विल रिफ्लेक्ट अपॉन द मून एनर्जी. कितना भी हो जाओ, समझे आप? वो गॉड्स डिजाइन है. शी विल चेंज because beautiful analogy. change is in part of a woman, change is not part of a man. तो तरबियत बचपन से ही सही हो जाना आदमी की नहीं हुई तो उन्हें जिंदगी भर नहीं चेंज होता. या तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको बहुत ही सॉलिड झटका मिलना, तो मे बी ही माइट चेंज. बट जो कुछ चीज़ें रूट में बैठ जाती वो नहीं बदलती. तो लिहाजा इफ़ यू आर looking at a man, if you didn't see his akhlaq and if you didn't see that he is not giving respect, जी हाँ ये नहीं रहती respect, just like that. आप देखना थोड़े टफ टाइम्स में हाउ ही कैन बैलेंस यू, हाउ ही कैन प्रोटेक्ट यू. तब समझ में आ जाना कि इन्हों वाकई औरत की इज्जत करते. बोलना अलग चीज़ है, इज्जत करते, और करना अलग चीज़ है. मेरी पूरी लाइफ में मैं सिर्फ एक आदमी को देखी जिसको वाकई औरत की इज्जत करने आता. ही डिड नॉट लुक एट द वुमन एज एन आई ऑफ लाइक विथ एन आई ऑफ लस्ट एंड जैसे कि वो एक कोई ऑब्जेक्ट है. वो औरत को नज़र में समझ में आ जाता कि कौन सा आदमी कैसा है. समझ रहे आप? तो सबसे ज़्यादा इज्जत देने वाला एक ही में, वो भी एक वे में ही वॉज लाइक अ फ्रेंड. मेरे चीज़ों में थोड़े बहुत हेल्प करे तो मैं बस उनसे बहुत सारी चीज़ें थोड़ी समझ सकी कि अच्छा देर आर गुड मैन इन लाइफ. अदरवाइज मेरा भी परसेप्शन ये हो गया था, एक्सपीरियंस एक्सपोजर ही नहीं था आपको. नहीं था मेरा. तो एक्सपीरियंस यही हो गया था कि देर आर ओनली ऑल मैन आर बैड. बट हाउ मैम, 16 आवर्स आप ऑन एन एवरेज काम कर रहे हैं यहाँ पे. यू आर 19 years old, यू हैव अ डॉटर, फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं करी, योर फादर इज नॉट सपोर्टिंग. कैसा चल रहा है जिंदगी, कैसी चल रही? अल्लाह ताला चला ले रहे. इन दी एंड जो थोड़ी बहुत फेथ रह जा रही ना, वो धक्के खाए हुए औरतों में रह जा रही. ट्रस्ट मी. एंड द रीजन आई कैन कम सिट हियर एंड टॉक टुडे इज दिस कि कहाँ से मिली मेरे को ताकत. इवन आई डोंट नो, आई हैव नो सेंस कि लाइफ कैसी चलती. आई हैव नेवर वर्कड बिफोर बिकॉज सी आई वॉज रेज्ड इन अ फैमिली जहाँ पे माई नाना यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. एंड मेरे को दुनियादारी बिल्कुल नहीं मालूम. आई एम वेरी नाइव एंड दे गॉट मी मैरिड एंड आई वॉज सपोज टू गेट लाइक, इतना ही मुझे पता था कि शादी होने के बाद योर हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ यू, एवरीथिंग विल बी फाइन.
बट मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादियाँ अच्छी है सिवाय मेरी। एक मतलब मेरे उसमें प्रॉब्लम है, एक मेरे मम्मी के उसमें प्रॉब्लम थी। एंड आई फील कि मैं वो जनरेशनल ब्रेकर बनूंगी मेरी फैमिली में इंशाल्लाह। इसके आगे मेरे ख़ानदान की कोई बच्ची सफ़र नहीं करना चाहिए, और मेरी दुआ है ये मेरे ख़ानदान के बच्चियों के लिए। इसीलिए मेरे ख़ानदान, मेरे कज़न्स वगैरह की भी शादी हो जाती, दे डोंट अंडरस्टैंड बट आई क्राई सो मच फॉर देम। उन लोग की शादी होते रहे का निकाह का कुछ ऐसा हो गया बोले तो मैं बॉयज़ के लिए भी रोती हूँ, बच्चियों के लिए भी रोती हूँ। Why? क्योंकि वो सफ़र करना है ही नहीं अपने को, और उन लोग की ज़िंदगी अच्छी रहना, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग रहना, अल्लाह उनके अंदर मोहब्बत डालना, उनके अंदर गलतफहमी नहीं डालना, बिकॉज समवन हैज़ टू मेक दुआ फॉर देम। अल्लाह ताला, व्हाट आई हैव लर्न थ्रू रिलीजन इज अल्लाह लिव्स इन द ब्रोकन हार्टेड। टूटे दिल में अल्लाह समा जाते। समझ आ रही मेरे को मेरी बात? तो जब अल्लाह समा जाते ना तो कोई भी दुआ कबूल होना शुरू होती, समझे आप? सो आई वॉन्ट टू यूज ऑल माई पेन इन टू पॉजिटिविटी। जितनी मेरे को दुनिया तकलीफ दी, बहुत बहुत तकलीफें से, ये तो आप जो सुन रहे हो वो तो ABCD है मेरे तकलीफ की जर्नी की। उसके बाद भी बहुत मिले मेरे को, बिजनेस में मिले, पार्टनरशिप्स में मिले, बहुत सारी चीज़ों में हुई। एंड मैं टूटी नहीं। आई डोंट नो व्हाई। आई यूज्ड टू समवेयर बैक डाउन, क्राई, देन आई यूज्ड टू गेट अप एंड वर्क। जान दो, कर दिए ना, फिर से मैं कर लेती हूँ, मैं फिर जुड़ जाती हूँ। बहुत टूटी मैं, बहुत तरीके से अल्लाह तोड़े। एंड देन नाउ टुडे, आफ्टर ऑल दिस breaking and then emotional maturity and realizations, I'm like, Alhamdulillah for all that breaking. Today I am. Retrospect में it was a blessing in it disguise. was a very big blessing. मैं जितनी आज पावरफुल हूँ, मैं शायद वो आप देखो थोड़े साल पहले मैं थी नहीं, मैं कोई और थी, आज मैं कोई और हूँ। और आज मैं ये बातें इसीलिए कर रही हूँ, मेरे को देखने वाले कई हैं, मैं चाह रही हूँ उनको भी समझ आ जाए कि you're not alone. Allah is with you. God is with you. You can be from any religion. But there is a higher power supporting you because you were designed in a certain way. And trust me, मैं जब ये बात कर रही हूँ ना, somewhere all the women will connect to this, क्योंकि वो जो spiritual energies है, 2 spiritual energies औरत के अंदर है, तो ये faith वाली, unseen वाली बातें औरत जल्दी समझ जाती। she will understand, अरे नज़र लग गई, ये लग गई, ये कहाँ क्यों है। अगर उन्हें बुरी भी है ना तो उसको ये समझ में आ जाता कि मतलब ये चीज़ें एग्जिस्ट होती। सो आई होप they understand where I'm trying to take them, कि no matter how painful your life is, you can take all that pain and project positivity. क्या हो जा रहा, पेन लेके स्पाइट हो जा रहा बहुत ज़्यादा। ये करे हमारे अर्लियर जनरेशन के पेरेंट्स, कि उनको तकलीफ मिली, बट उन्होंने, हमारी सास तो ऐसा नहीं करे थे, तुम लोग क्या बड़े ऐसे नाजुक है, तुम लोग ऐसे है, तुम लोग वैसे, हम तो ऐसा सह गए, हमारे सास के इतने जुल्म सह गए। तो जरूरी नहीं है कि आप भी सामने वाली पे करो ना। जुल्म सहना जो है, टॉलरेंस का फ्लेक्स करना, वो बहुत अजीब चीज है नहीं। एक्चुअली यू शुड फ्लेक्स दैट आई टॉलरेटेड so that I can protect you. This should be the womanhood. This should be motherhood. समझ रहे हैं आप कैसा हो जा रहा? मैं आपको एक बात बोलती हूँ, according to Islam, first it comes God, then it is our prophet, then mother, then father, then everybody else. आप सोचिए, why 3 times? When she was going through that pain, God himself asked the prophet to honor women. Are we honoring ourselves? Tell me, if I am becoming a spiteful woman just because somebody hurt me, what? Am I honoring the three times का power? मैं दूसरों के बच्चों को hate कर रही हूँ, अपने बच्चों को love कर लेती हूँ. What is that? And ये जो over protection भी है ना, ये भी destroy कर दे रहा. Women are not good mothers now. They have to learn to become mothers. Because in our religion, mother's dua, mother's prayer directly goes to God. So why are you praying evil for your child? Who does that, ma'am? है जब बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते ना, ए दीवाना ऐसा है वैसा है, ये वो निकलते हैं मुंह से, बहुत गंदे बातें निकलते हैं. एंड दैट इजंट इंटेंशनल, आई बिलीव. तो इनवॉलंटरी है.
माँ की जुबान में 3 if the prophet said something, imagine first God then prophet, if the prophet said आई दीवाना है वो, ये बोले तो कैसा दिखता है वो? Then उसके फौरन बाद मदर मदर मदर, आप 3 बार 10 बार सोचना मेरे हिसाब से तो अरे ये इरिटेट होने से पहले, you know, don't take all the burden on yourself and train, you should have trained your sons. और trust me, जो मैं materialistic बात कर रही थी पहले, मदर्स को भी ना बेटों से सिर्फ मटेरियलिस्टिक गरज है, कोई सच्ची मोहब्बत नहीं है मेरा बेटा बोल के, जो ये मदर्स हैं जो नार्सिसिस्ट पैदा कर दे रहे। क्यों? उनके हस्बैंड्स उनको नहीं लव करे थे होंगे और वो क्लियर समझ में आता, आप वो देखना, या फिर दे वर लाइक वेरी स्पाइटफुल और समथिंग, एंड क्यों पकड़ के रखना चाह रहे अपने बेटों को? आगे जाके इन्हों कमा के लाता, इसकी दौलत मेरी रहना। सुनिए तो डर हो रहा मेरे को। नहीं, ये माँ की गलती है। क्या तुम ये सिखाना चाहिए था कि बेटे दौलत कुर्बान कर दो, बेटे तुम्हारे अखलाक ऐसे, तुम ये बड़े लीडर बनो, बेटे तुम ये बन जाओ, पूरी उम्मत के लिए ये बन जाओ, पूरी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट बन जाओ, बिकम एन एग्जाम्पल, बिकम दिस दैट। समझ रहे आप? बिकॉज सी आई रीड इस्लामिक बुक्स, आई हैव ओनली इस्लामिक नॉलेज। द डॉटर ऑफ आवर प्रॉफिट फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, who did she create? She created two sons and gave it in the way of God to create an example. Stand with the truth. Are we teaching our sons to stand with the truth? Mothers are, when the sons are wrong, mothers are going and covering it. Support कर रहे हैं अभी. Why? Who is the culprit now? ये root cause है narcissism की. पैदा ही वो thoughts, मतलब in your womb and your mind there is a very solid connection. जब वो 9 months में, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलती हूँ कि there was a boy who was born and he had 18 पारे हिप्स by birth. जैसा उन्होंने बोलना शुरू करे, थोड़े टाइम के बाद उन्होंने 18 पारे कोई उस्ताद को सुना दी। बेटे कैसा करे? बोले तो मेरी माँ 18 पारों की हाफिज है, ओनली 18। क्या बात है? समझ रहे आप? चाहे तो वली पैदा करो, चाहे तो शेर पैदा करो, या तो खाली गीदड़ पैदा करो, और अपने पास थोड़े गीदड़ के जैसे हो गए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों मैं ये वर्ड, यू नो, इट्स लाइक हाइना ईटिंग रॉटन फ्लैश एंड ऑल दैट एंड थिंकिंग वी आर वेरी पावरफुल। ऐसे वाले ऐसे मर्द हो जा रहे, किस पे खा रहे? औरत को मार रहे। उसकी हिफाजत करना था ना। समझ रहे आप? किसे सास किसे क्यों कॉम्पिटिशन्स कर रहे मालूम? कई सास तो मेरा बेटा उसको ज्यादा पूछ रहा। बी हैप्पी दैट योर सन नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ अ वुमन। बी सुपर हैप्पी, से इट प्राउडली, माई सन कैन टेक केयर ऑफ हिज वाइफ वेरी नाइसली। एंड अगर औरत गलती कर, आई एम अ मैच्योर वुमन ना, अगर आगे मेरी कोई छोटी बहन है या मेरे ज़ेरे परवरिश कोई भी, मेरे पास स्टाफ में, स्टूडियो में सब बच्चे हैं, बहुत समझाते रहती हूँ मैं उन लोगों को। तो मैं क्या बोलना, बेटे यहाँ पे तुम्हारी भी गलती है, ओके, डोंट डू दिस, यू गॉट इमोशनल, बिकॉज इमोशनल पावर बहुत ज़्यादा आ जाती, एकदम हम खफा हो जाते, और ये होता हमारे साथ बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर दैट वी आर मेड इनटू। हम नहीं रह सकते स्टेबल, लाइक वन एक ही मूड नहीं रहता हमारा, थोड़ी देर में मूड ख़राब हो सकता। और अब कैसा हो गया मालूम, आई एम आस्किंग वुमेन ओनली टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। यूजुअली इट वाज द मैन हु हैड टू एक्सप्लेन, नहीं आप थोड़ा वो हो रहे, काम डाउन, I'll take care of you, no problem. Masculine energy, दिलासा तो देना, मैं हूँ बोलने तो आना, उसको खाली हर हाल में मैं हूँ बोल दिए तो उन्होंने ठीक हो जाती। मैं जब समझ गई कि आप खुद को कंट्रोल करो बोल के समझाना पड़ा। मेरे को ये बच्चियों को भी समझाना है कि बेटे कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा है, उन्होंने कुछ बुरा नहीं करा, उसकी थॉट ऐसी थी, इसकी सुलह करके लेके चल। नाउ द मिनट शी इज, बेटे को जाके बोल रहे कि देखे तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी, क्या करना उन्हें? इंसाफ कैसा करना बोलो आप? उस पहले तो उन्हें बेचारा थोड़ा वीक पैदा हुआ और थोड़ा बहुत भी कुछ करने की कोशिश कर रहा तो बोल बोल के वो कर दे रहे। कैसा उसको भी तो उस कहीं ना कहीं मर्द ये भी सोच ले रहा कि माँ का मेरे को ख्याल करना है भाई, माँ का दर्जा अल्लाह ताला बोले इतना आला है, ये है वो है, तो है ना भाई, उसके भी दिल में फियर्स। एक ही औरत को उन्हें रिस्पेक्ट करता, यू नो, एंड दैट्स हिज मदर। बहन को भी कभी कभी नहीं करते उन लोग। देयर इज अ कंफ्यूजन मैम, देयर इज अ कंफ्यूजन इन मेल सोसाइटी, आई वुड से कि पिनिकल पे रख लिए, क्लोज टू गॉड मदर को रख लिए, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, मैं ये बता रहा हूँ कि बैलेंस करने की जो स्किल है वो सीखना ज़रूरी है। एग्जैक्टली।
आपके जो पार्टनर है और आपके वालदा है उसके बैलेंस करने की ज़रूरी है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज़ यूजिंग यू इमोशनली. तुम्हारे इमोशनल ट्रिगर्स को कौन ट्रिगर कर रहा अपने फेवर में काम कराने के लिए. एक बात मैं बोलती हूँ, Yeah. बिकॉज अ मैन इज नॉट इमोशनल. सबसे ज्यादा एक बेटे को अपनी माँ जानती. हम्म. तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा कल्प्रिट माँ को पहले ठहराइए. उसके बाद आप बैकआउट होके थर्ड आई बन के भी देखना कौन किसका नेचर कैसा. बिकॉज एक ये भी हो गया कि मेरी माँ तो ऐसे है, मेरी माँ के जैसे बनो. आप उसको आइडल फिगर बना लिए, मगर नहीं हो सकता ना ऐसा. नेचर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे अम्मा ऐसे, आप भी ऐसे बोलो. व्हाट डज दैट कैसा? इवन मीन? दूसरी औरत है वो, अम्मा नहीं होती. एग्जैक्टली. दूसरा परवरिश हुआ, उनकी टीचिंग्स अलग है, उनके पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग अलग है. पूरी दूसरी औरत को लाए तुम, अब लाके घर पे बोल रहे हैं कि हमारे वैसे ही बनना है. कितनी दीवानी बात है, कितनी स्टूपिड बात है. ये स्टूपिडिटी चल रही. तो सास इज सेइंग मैं तो ऐसी थी, एंड समवेयर नो अब थे होंगे हम ऐसी अब ऐसे हो जा रहे बच्चियां. और वो हो जाने की वजह से कैसा हो रहा मालूम, द मदर इन लॉज आर काइंड ऑफ लूजिंग द पावर एंड दे आर सेइंग अच्छी नहीं है तुम्हारी बीवी. बट ट्रस्ट मी, आप पहले तो अपना वो जो रूल है ना, पहले कीप योर वाइफ अ लिटिल सेपरेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू डोंट नो, शी डजंट नो यू ऑल्सो. हाउ विल शी नो यू? आप बोल रहे रेडीमेड बन के आना, तो कहाँ से बन के आएंगे भाई? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि we should all create a few centers where we educate people about एजुकेशन की कमी तो वाकई में है. कोई भी नहीं सिखाता कि क्या होने वाला है शादी के बाद. पहले शादियां मत करो आप. पहले अपने गलतियों को सुधार लो. क्योंकि अब आगे की चीज, अब बहुत वर्ल्ड हैज बिकम तबाही. और मैं आपको, आप जो टॉपिक से शुरू करे थे, मैं बोली थी रोबोट्स विल टेक ओवर. औरतों को होना कोई बात करने के लिए, इमोशनली उनको दिलासा देने के लिए, तो ChatGPT से बात कर ले रहे, उन्हें दिलासा दे ले रहा. ठीक है. अब थोड़े टाइम के बाद देर आर सम रील्स एंड एवरीथिंग दैट आर कमिंग एंड पॉपिंग अप that a robot will come inside the house, he'll cook for you, he'll take care of you and all that stuff. And for men also there are female robots who will say कि तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैन है, तुम ये है वो है. पहली बात तो ईगो सबसे बड़ा दुश्मन रहता. प्लीज किल योर ईगोज. बट अगर आप नहीं कर पा रहे ना ये, तो जब रोबोट्स आ जाएंगे इट विल बी सो ईजी टू किल यू. बिकॉज रोबोट्स कौन बना रहे? लाइक यू नो देयर इज अ सिंडिकेट, क्या बोलते हैं आप, जो वर्क विद द डेविल्स. ये लोग ही तो ये इतना सारा लेके आ रहे, ये टेक्नोलॉजी 5G, अब तो 6G में चाहे सो मच रेडिएशन. वी आर नॉट सपोज टू लिव इन सो मच रेडिएशन ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ वेरी बिग हैवक. 100%. बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन भी औरतें जो इतना रिएक्ट करना था, इतना रिएक्ट कर, एम्पलीफाई हो जा रहा हो. मर्द का टेस्टोस्टेरोन लेवल जिससे मैस्कुलिनिटी बूस्ट होना था, वो भी जीरो हो जा रही. एंड बिकॉज ऑफ दे कांट सेव देमसेल्व्स, सो दे आर जस्ट गोइंग. कौन कमजोर, उस पे मैं वही बोल रहा हूँ ना मैं, ये वो पंचिंग बैग बना दिए क्योंकि कमजोर है. अब उन्होंने ज्यादा कुछ मजबूर भी है क्योंकि डिवोर्स इतना आसान नहीं है. पंचिंग बैग है. आप सोच रहे, लेकिन अब वुमेन इज नॉट, नहीं वैसा नहीं रहा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई डिवोर्स रेट्स ज्यादा हो गए. क्यों बोला आप? मेरे को फिर भी थोड़े साल लगे थे छोड़ने के लिए. थोड़ा मुश्किल था वो दौर में. एग्जैक्टली. अभी क्या हो रहा, नहीं समझ में आ रहा. 1 महीने में. अच्छा, ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हुआ आपको, आपके हिसाब से थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे नहीं चले गए? एग्जैक्टली. ये क्यों हो रहा है? मैं ये तो बोल रही हूँ ना, इमोशनल एक्सट्रीम्स में चले गए. अब हम, दिस पर्सन इज ऑल्सो इन द एक्सट्रीम्स, दिस पर्सन इज ऑल्सो इन द एक्सट्रीम्स. इफ यू हैव टू ब्रिंग अ डिवाइन बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अंडरस्टैंड है. क्यों कॉम्प्रोमाइज? दोनों को भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है. कॉम्प्रोमाइज थोड़ी चीजें आप में भी बुरा, मेरे में भी कुछ बुरा. दैट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. यस. कॉम्प्रोमाइज मतलब, एग्जैक्टली, कॉम्प्रोमाइज मतलब मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा, फिर भी कर लो. ये हो गया. क्योंकि क्या हो गया ना, ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज कर लो, किसको बोला जा रहा? औरतों को. बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कहाँ से होता? कॉम्प्रोमाइज इज, प्लीज स्टॉप मेरे हिसाब से, सॉरी, बट डोंट यूज द वर्ड कॉम्प्रोमाइज. अंडरस्टैंडिंग इज अ बेटर वर्ड. यस. यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, मूव अहेड विद हर. यू डू नॉट अंडरस्टैंड हर, रिस्पेक्टफुली से हमारी नहीं जमेंगी. समझ में आ रहा आपको? रिश्तों से पहले ही समझने की कोशिश करिए. और अब ये ही टाइम है, और मेरी ही जनरेशन, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी ये अवार्ड का शो हुआ था, वुमेन ऑफ इम्पैक्ट, माशाल्लाह. Congratulations, ma'am. Thank you so much. And what I observed over there is
देर आर न्यू वुमेन कमिंग अप. पहले इतने वुमेन नहीं थे. एंड जो मेरी जर्नी से बहुत सारे दे एक्चुअली कॉल मी दैट वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू टू डू दिस डू दैट. और ये क्यों है मालूम? क्योंकि पहले सिर्फ प्रिविलेज फैमिलीज़, बहुत रिच फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ मीडिया में रहते थे, उन लोग के औरतें थोड़ी काम कर लेते थे एंड दे यूज्ड टू बी फेमस. एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम अ ज़ीरो बैकग्राउंड, from a place where it was very painful as a single mother, and I paved my way through hard work. मेरे को धक्के भी पड़े, फिर भी मैं उसको परसिस्ट करी. और अल्लाह का शुक्र है, लाइक यू नो, अल्लाह क्रिएटेड दोज क्लाइंट्स. कहाँ से वुमेन आए मेरे को सपोर्ट करने के लिए. और कई तो बच्चियाँ ऐसे थे कि आपको मालूम आपका स्लॉट मिलना, बल्कि मैं तहज्जुद पढ़ी थी. क्या बात है. आई वॉज शॉक्ड कि कहाँ से. तो व्हेन गॉड सपोर्टेड मी इन दैट पाथ, मेरे को ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करे. यू नो, मेरे को जब फर्स्ट अवार्ड मिला था तो मेरी फैमिली नहीं सेलिब्रेट करी. मेरे को उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था इन्हों क्या कर ले रहे, क्या इन्हों बेहया हो गए, इन्हों निकल गए, इन्हों आवारा हो गए. ऐसा हो गया था मेरी फैमिली के उसमें. बट वुमेन फ्रॉम हैदराबाद कहाँ मेरे को खुद नहीं मालूम, स्टोरीज पे शेयर करे, कंग्रेचुलेशंस बोले. एंड ट्रस्ट मी, मेरा पहला अवार्ड जब मेरे को मिला था, वो लेके मैं तन्हा जानिमाज पे रोई थी, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है, मैं सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं था मेरे पास. और एक्सेप्ट योर डॉटर. माय डॉटर वाज वेरी लिटिल, शी डिडंट नो एनीथिंग. चलो कहीं तो है, मतलब बहुत छोटी थी. शी डिडंट इवन नो उसकी मदर जीती थी. बट नाउ she is there with me in all my wins and all my pains also. she is there. अल्लाह, बेटी बहुत अच्छी नेमत है, बहुत अच्छी नेमत है मेरे हिसाब से. you know what she says, mommy, you should be thankful that Allah gave you a girl, अच्छा, not a boy. I said, why baby? See, when you don't want to eat or anything, no, I put food for you and I bring you in the plate, and when your feet are hurting, then I am the one who's pressing it for you. एंड ट्रस्ट में जो उन्हें बातें बोली लाम. एंड देन व्हेन यू क्राई, नो, जब मैं ज़रा रोती हूँ ज़्यादा, एंड देन व्हेन यू क्राई, नो, आई कम एंड हग यू. बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड दिस, नो मम्मा. तो लाइक सही बोल रहे बेटे, सही बोल रहे आप. अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरे को बेटी छुई. और मेरे को ये है कि जो मिस्टेक्स मेरे साथ हो गए ना, मैं अपनी बेटी पे नहीं करूँ. दैट वाज द फर्स्ट रीज़न आई टुक माई डिवोर्स, कि बस ये ख़ानदान के लोग मेरे को सही नहीं दिख रहे. मेरे को मेरी बच्ची को नहीं गुजारना है. जनरेशनल बैगेज को यहीं पे खत्म करना है. मेरे को खुद वो जिंदगी नहीं मालूम थी. बट ट्रस्ट मी, देयर आर ससुराल वाले वर्स देन व्हाट आई फेस्ड, वर्स देन व्हाट आई फेस. आप मेरे उसको बोल रहे कि बहुत वर्स है, बट देर आर एग्जिस्टिंग. मेरे पास कई बच्चे आए थे जॉब्स वगैरह के लिए, तो मैं उनसे बात कर लेती. मेरे को है नेचुरली ऐसा हमदर्दी, क्यों कर रहे बेटे जॉब, वाई एंड ऑल दैट. एक बच्ची का किस्सा मेरे को अभी तक झंझोड़ देता मालूम. आई से अल्लाह मेरी ज़िंदगी बेहतर है वो बच्ची की ज़िंदगी से, और मैं बहुत दुआ करती हूँ. शी वॉज बॉर्न, और उनके पापा का हज में इंतकाल हो गया था. हज में ख़ानदान वाले कैसा रखना चाहिए था, कम से कम ये देखना कि फादर पास्ट अवे लाइक दिस, सो लेट्स लव दिस लिटिल गर्ल. यतीम को तो देखना बहुत बड़ी चीज़ है. एंड क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद वो फर्स्ट ईयर में ही हुआ करते इट सीम्स ये, और बच्ची की जो मदर की शादी करा दी. तो नाना नानी पाल रहे थे, या नाना पाल रहे थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. और जब तक नाना थे वो बच्ची के लिए कर रहे थे. एंड जो साथ वाले जो मामीज एंड ऑल रहे थे, उनको इतना टॉर्चर करे, और अपने बच्चियों को बोलना कि उसके साथ न को खेलो, उन्हें यतीम है. बोली बचपन से इतना झेल रही है बच्ची, चलो भाई हम भी झेले, मगर ये सोचो अटर लोनलीनेस. वहाँ नको जाओ, उसका कमरा अलग रखो, उसके पास नको जाओ, ऐसा नको करो. फिर उसकी ज़बरदस्ती ऐसे इंसान, इट सीम्स दे न्यू समवॉट कि ये इंसान अच्छा नहीं है, फिर भी वहाँ पे शादी कर दी. पहले तो ज़िंदगी भर बेचारी एक दर्द से गुजरी, फिर वहाँ शादी कर दिए. फिर वो शादी में दैट मैन टॉर्चर्ड हर सो मच, कुछ कैद करके रख देना, कमरा बंद करके रख देना, आई डोंट नो वाई. फिर किसी तरीके से उनके नाना छुड़ा लिए गए थे. देखिए बहुत पैसे वाले नहीं थे, एवरेज थे, तो नाना जब तक कर सक रहे थे करे. देन व्हेन नाना पास्ट अवे, ऑल दीज मामा मामी एंड ऑल नो तुम मनहूस है. एंड मैं वो बच्ची को आप वो देखे ना, शी इज सो ब्यूटिफुल. व्हेन माय मदर सॉ हर, शी सेड कौन है ये बच्ची, कोई लेबनान की दिख रही, यू नो, इतनी प्यारी थी. तो ये चीजें हो रही, एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कचरा हो गया पूरा. एग्जैक्टली.
किसी से आंख में आंख डाल के बात करने के काबिल नहीं छोड़े, फिर क्या इतना डिग्रेड कर दिया। आप वैसे ही लोग ना, मनहूस है। नहीं वैसे ही लोग जो ऐसा डिग्रेड कर देते ना, व्हेन दे मीट समबडी, लाइक फॉर एग्जांपल वो लोग आके मेरे से मिल रहे, लाइक चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई नाम इज्जत कुछ हो गई, माशाल्लाह आप ऐसे हैं, आप वो है, मतलब इतनी मीठी हो जाती है उनकी जुबान, आप 10 बार डाउट करना कि इन लोग वो करे भी होंगे क्या हरकत। चाहिए बोल के। हिपोक्रेसी बहुत हो गई, समझ रहे आप, मुनाफिक चालें बहुत हो जा रही। सो कहीं ना कहीं बैरियर टूटना है। और मेरा मैसेज किसको है मालूम, जो औरतें ना, मैं औरतों को ये नहीं बोलती कि तुम पर्दा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं, दैट इज now in this age and generation it's stupidity because she has to fight a war, she's standing against the world as well. I'm 100% sure जो बच्चियां ऐसा बाहर आ रहे जो हार्ड वर्क करके with zero financial security अपना कुछ बना रहे, my message is to them that connect emotionally with yourself, understand your emotional levels, don't make the mistake what the men have made or our previous generation women have made. Now make sure that your sons will become leaders. Now make sure your daughters will become taken care of. मैं ये नहीं दुआ करूँगी कि औरतें इंडिपेंडेंट हो जाना, बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट बैलेंस. दे हैव टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ फैमिलीज. एंड आई एम सीइंग सर्टन वुमेन हु आर ट्राइंग टू एजुकेट अबाउट दिस, बट दूसरे कंट्रीज़ में थोड़ा हमारे पास नहीं हो रहा. एंड आई होप दैट कम्स आउट, और इंशाल्लाह अपनी अवाम की, लाइक अपने हैदराबाद की वुमेन चेंज होना. बट दुनिया के सामने बोलूं नहीं बोलूं बहुत बार सोची, एंड आई वाज लाइक मेरा खुद का करियर है, मैं रिस्क हो जाता है, रिस्क हाँ क्या करूं, नहीं समझेंगे. बट अब मेरे को कैसा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह करियर से मैं एक मुकाम पे पहुंच गई. एंड देन आई वेंट इनटू अ टोटल स्पिरिचुअल पाथ सिंस 2024. मेरी एक जर्नी ही बदल गई, मेरा पूरा दुनिया को देखने का परसेप्शन ही बदल गया. अर्लियर इट वाज लाइक मैं कुछ बनूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब हासिल कर ली. एंड जो मेरे को होना था, जिस चीज़ से मेरे को लोग नीचा दिखाए थे ना, उस चीज़ से जवाब दे दी थी मैं, बदला दे दिया खत्म मेरे को. और मैं अपने मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं किसी को गाली दे के या मैं अब अंदर कुड़ करके ऐसा सक्सेस मेक नॉइज बोले आप. आई वाज लाइक नहीं, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, बिकॉज नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग. जब मैं बोलती थी ना, ट्रस्ट मी, माय ओन मदर वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग. बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, मैं हर तरह की चीज़ से गुजर गई. इन द लास्ट थिंग, लाइक ऐसा रह जाता कि मेरी मदर समझ जाना, बट उन्होंने मेरे को नहीं समझ पाए. एंड ट्रस्ट मी, मेरी मदर कोई बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं है. शी इज़ एक्चुअली अ वेरी स्वीट हम्बल वुमेन. एंड बस इतना है कि उनको कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी. बट उन्होंने जिस तरीके से कई चीज़ों में मेरे साथ ठहरे थे, तो मेरे को पावर उनसे मिली. बट देन व्हेन आई वाज गोइंग ऑन दिस पाथ, माय मदर डिड नॉट लाइक मी बिकमिंग सो ओपन एंड एकदम हिजाब तुम कहाँ चले गए, क्योंकि उनको ऐसा होता था कि मेरे बच्चे अल्लाह के काम के लिए हैं, मेरी अल्लाह का काम नहीं कर रहे, तो उनके रोने में रहते थे. तो बट समवेयर अल्लाह वाज एक्चुअली पिकिंग मी अप फॉर दैट. Here's the confusion people have. अल्लाह का काम का यानी यही समझते कि बस तस्बीह कर लेते रहो, कुरान पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो. नो, अल्लाह पॉडकास्ट आप आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और वो सुन के वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है जो खुद अपने ज़िंदगी से कंफ्यूज है, समझने नहीं आ रहा उसको ज़िंदगी में क्या करूँ. ईमान जैदी का उन्होंने पॉडकास्ट खोल के सुने और समझ में आया, ज़िंदगी का रास्ता दिखाइए ये, और उन्हें दुआ दे दी. अल्लाह का काम नहीं है तो और क्या है ये? एग्जैक्टली. बात ये भी नहीं है कि अल्लाह के काम में मैं कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ बन गई, भाई मैं कर रही हूँ. I was picked for that. I did not pick this path. समझे आप? तो जब चुन लिया गया और चैलेंज भी दिया गया कि मैं तुमको हर चीज दे दिया तुम्हारी जिंदगी में, अब तुम क्या कर सकते? Will you give back to the society what the society gave to you? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको क्या बोली, कितना सपोर्ट करे मेरे को बच्चियां, इतने क्लाइंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह कैसा मेरा नाम बना दिए, कोई साथ तो दिया ना. There was some high power जो ड्राइव कर रहा था कि ईमान के क्लाइंट बनो, एंड ईमान को देखो
ईमान से इंस्पायर हो। स्टूडेंट्स भी मेरे बहुत बोलते हैं, आके यही बोलते हैं कि हमको आपके जैसे बनना है, आपके जैसे बनना है। तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरे से अभी अच्छे बनो और अपना सितारा आसमान में खुद बनाओ, बिकॉज आसमान बहुत बड़ा है, चमको, नो प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा हूँ वो स्पिरिचुअल, this is the common trait I have noticed in people who are very driven, people like yourself, कि उनके पास कहीं ना कहीं एक तकलीफ है कि I have to prove myself, मैं क्या बोलते हैं, एक void है जिसको fill करना है। नहीं, they are doubting a wrong person. Exactly. बताना पड़ता है लोगों को, बताना पड़ता। और जो इस तरीके से बताते ना, कुछ खड़ा करके बता दिए, ये लोग अच्छे रहते, rather than वो लोग जो हम there are people who will just go behind your back and murmur stuff and gossip वगैरह exactly, करके। negative। दो एस्पेक्ट्स, आप प्रूफ करना चाह रहे ना, आप साइलेंटली कुछ बिल्ड करके बता दो क्योंकि देखती दुनिया, या फिर आप साइलेंटली पीछे अपने आप कुछ खत्म कर लो, उन्होंने ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, एंड ट्रस्ट मी वो इंसानी खत्म हो जाता है। नेगेटिव लूप इज नॉट नाइस, इट्स एन एनर्जी टू बी। अगर हम ये पर्सपेक्टिव से देखें, पेन है, एक एनर्जी है वो। अब वो एनर्जी को इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं आप जैसा इस्तेमाल करें, आपके पेन को कुछ बना दिया, आप कुछ एक एम्पायर बिल्ड कर दिया आप। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, वो पेन का इस्तेमाल करके दूसरों की बुराई करना शुरू करते हैं, पीठ पीछे बात करना शुरू करते हैं, नेगेटिव वे में यूज करना शुरू करते हैं। इट इज हाई टाइम वी रियलाइज आवर पेन, we acknowledge our pain. It is not time that we hide our pains. कोई आपके साथ बुरा करे, आप समझ जाओ कि वो आपके साथ बुरा करे और आपको हील होना है वो चीज़ से, आपको तकलीफ हो रही तो आप किसी से बात करो। अगर आपको समझ में आ गया कि आप किसी से नहीं कर सकते, नाउ आई थिंक इट्स टाइम पीपल शुड टेक थेरेपी। तो उनके पास जाइए, या फिर और भी होंगे उनके पास जाइए, whoever you are comfortable with as your therapist, but start going. लोग वो जो पुराने ज़माने में आए हैं दिमाग के दीवाने नहीं है वो कुछ भी, प्लीज गो। आई माई सेल्फ वेंट फॉर थेरेपी, कि जाना पड़ता भाई, क्योंकि कहाँ वेंट आउट करेंगे। डोंट वेंट आउट इन फ्रंट ऑफ योर सर्कल बिकॉज दे आर गोइंग टू मिस यूज इट अगेन। तो डोंट मेक इट अ वीकनेस, गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन हु इज ट्रेन्ड कि आपकी पर्सनल चीज़ें आपको कैसा गाइड करना है और कैसा आपको प्रोटेक्ट करना है और आपको कहाँ लेके जाना है और हाउ टू ब्रिंग यू आउट ऑफ ऑल दैट वेयर यू आर ट्रैप्ड। तो मेरे ख्याल से थेरेपी स्टार्ट करना इज लाइक अ वेरी बिग पुश फ्रॉम माई एंड। आप कोई भी होंगे, थोड़े पैसे थेरेपी में डालो, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज डिस्ट्रॉइंग योर हार्मोनल, योर फिजिकल, योर इवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो घरों में अनबन चल रही है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट? both of them should acknowledge that there is a problem. See, जब तक इंसान ये नहीं समझा कि कोई प्रॉब्लम, ये कैसा हो गया मालूम, उन्होंने बोल रहा औरत में प्रॉब्लम है, औरत बोल रही आदमी में प्रॉब्लम है। कुछ भी करो, थेरेपी के लिए काउंसलिंग सेशंस बहुत हो रहे, ऐसे फील्ड में लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ जाओ आप पहले समझने की कोशिश करो। सो आई वुड एडवाइस काउंसलिंग फॉर हस्बैंड वाइफ, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा रिजिड जो रहेंगे फॉर चेंज इज द मदर। जो मदर्स रहेंगे, इवन बीट ऑन एनी साइड, क्योंकि वो लोग के अंदर कल्चरल रूट्स एम्बेड हो गए। सो यू कैन नॉट टेक देम टू थेरेपी नाउ अकॉर्डिंग टू मी। सो यू हैव टू बिकम पावरफुल इनफ टू डील विद देम, एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक थेरेपी। समझे आप सोचेंगे इनू बदलना, इनू करे ना, नहीं, आपको थेरेपी लेके उनको माफ करने वाला बनना है, बिकॉज वो बड़े लोग अभी चेंज नहीं हो सकते। समझे आप, एक उम्र क्रॉस हो जाने के बाद वो ख्यालात नहीं बदलते। सिर्फ कब आते मालूम, ये ख्यालात डेथ बेड पे आएंगे, अगर आना भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा बनाए कि खुद ब खुद वो आ जाते हैं कि मैं ये गलत करा, मेरा टाइम आई डेंट यूज वॉट एवर इट इज। आई होप वो लोग चेंज हो, इफ दे कैन इट्स वेरी गुड। बट अब की जनरेशन जो है उनको चेंज करने से अच्छा है अपन चेंज हो जाना। मैम, दैट बीइंग सेड, what is that one advice you would like to give to those mothers जिनके बच्चे अभी शादी करने वाले हैं और उनके घर में एक किसी की बेटी या बहू आने वाली है? एक अगर एडवाइस अगर देनी है तो वो क्या है? एडवाइस, सजेशन, कुछ भी बोलिए। बड़े लोगों को एडवाइस दियो बोल रहे हैं आप, इसलिए थोड़ा मैं, जरूरी है, लोग हैं इमोशनली इमैच्योर लोग हैं। एग्जैक्टली। बट क्या है ना, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं अपने बड़े लोग, होने दो, टट बोल के टूट जाता दिल। हाँ बच्ची बोली। मैं ये बोलूँगी कि आप अपने आप से खुद, आप बच्चों को सिखाते ना कि भाई तहज्जुद पढ़ो, ये पढ़ो, नमाजें पढ़ो, आप
अल्लाह ताला से तहज्जुद पढ़ के या फिर डिवाइन सोर्स, आप कोई भी रिलीजन के हो, कनेक्ट होके आप ये पूछिए टू द डिवाइन सोर्स, व्हाट इज़ द मिस्टेक इन मी एंड व्हाट हीलिंग आई हैव टू डू। मैं कैसा ये रिश्ता बचा सकती हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं आगे वाले को तकलीफ ना दूँ, क्योंकि बड़े भी तो छोटों को तकलीफ दे रहे ना भाई। तो आप सिखा रहे अपने बच्चे को, देखो बेटे किसको भी तकलीफ नहीं देना, फिर आप अपने बच्चे को तकलीफ दे ले रहे। उसकी ज़िंदगी में अगर वाइफ आएंगी और उसकी वाइफ को आप बुरा ट्रीट करेंगे तो इवेंचुअली योर सन इज गोइंग टू गो मैड, नो। मसला क्या है, अब आप बोल रहे हैं, आप जो बात बोले, आप जो सोल्यूशन दिए, उसमें ईगो तोड़ना पड़ता। ईगो तोड़ के अकाउंटेबल करना पड़ता कि मेरे में कमजोरी है, वो कमजोरी को मैं ओवरकम करना चाह रही हूँ, मेरे को रास्ता बताओ बोल के। यहाँ पे वही नहीं टूट रहा ना साहब, ईगो नहीं टूट रहा है। वेरी ट्रू। उसका क्या है सोल्यूशन? अब ईगो तोड़ने का सोल्यूशन क्या रहता मालूम? धक्का पड़ना। अल्लाह ताला धक्का पड़ाते, उसका ईगो टूटता। इफ़ यू आर नॉट ब्लेस्ड इनफ टू लर्न दिस, और आप देखिए बहुत लोग बातें करते, अगर कहीं ना कहीं मेरी बात उनको कनेक्ट हो गई तो शायद वो समझ भी जाए, क्योंकि मेरी दुआ है कि may their hearts hear what I'm trying to say and understand what it is, because a powerful prayer can also change certain things. तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि सब चेंज हो, और ये बोलना कि भाई उन लोगों की ज़िंदगी में खुश रहना, एंड ये सोचना कि मैं मेरे बेटे से क्या रीज़न से कनेक्टेड हूँ, कि मैं उसके वाकई मोहब्बत कर रही हूँ या मैं उसके वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डर रही हूँ, या फिर आई हैव पैम्पर्ड माई चाइल्ड सो मच। और बेटी के टाइम में भी सोचिए आप, बॉयज मदर ऑल्सो शुड थिंक, डॉटर्स मदर ऑल्सो। डॉटर्स मदर हैज़ दिस फियर कि आए है लोग क्या बोलेंगे, मेरी बेटी क्या करेंगे, और बेटी को एकदम ही अंडर कॉन्फिडेंट कर देते। लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं, कि अगर नहीं कर रहे ना तो मेरी, आप तो एक्सेप्ट कर लो ना अपनी बेटी को, समझे आप? तो आप वहाँ पे भी चेंज करो। आप पूरा एक अपने इनसिक्योरिटीज़ का पूरा बर्डन एक बेटी पे डाल दे रहे, और उसको एक्सपेक्ट कर रहे कि वो रिश्ता संभालो। नहीं बेटे तुम संभाल के चलो, तुम संभाल के चलो। अरे इंजन नहीं चल रहा तो बोगी को क्या बोल रहे लीडर ही सही नहीं है तो उसको बोल बोल के क्या ही कर लेंगी बेचारी। तो प्लीज मेक श्योर दैट उसको, बेटियों को आप एक सेफ स्पेस दो। एज अ मदर गिव हर अ स्पेस टू टॉक टू यू। थोड़े मदर्स क्या है मालूम, अपनी बेटी से बात भी नहीं करते, पूरे XYZ इनसिक्योरिटीज के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन देखो बेटे जिंदगी ऐसी है, ऐसा लेके चलो, ये चीजें एडवाइस नहीं करते। बहुत ज्यादा इंटरफेयर करके हाँ तुम्हारे साथ ऐसा कर दिए। सी जब वो बच्ची अपने घर में रहती ना, वो अम्मी कितने की बार उसको डांट दी कि तुम कैसे है, तुम ऐसे। अब कभी कभी वहां से भी कुछ ऐसा आ गया ना, हाँ मेरी बच्ची को मारते, मेरी बच्ची को रुलाते, आप भी रुलाए ना, समझे आप? नहीं मैं तरबियत कर रही हूँ बोलते हैं आप। तो आप क्या, एक रहता है एक्सट्रीम चीज, कोई ऐसा ओके चीज है जिसपे आप समझा बुझा सकते तो समझा लो। What is that thing which women possesses which men do not understand? औरतों के पास है जो आदमी नहीं समझ सकते, ये इमोशनल कैरेक्टर। मैं बार बार यही बोलूंगी क्योंकि men are not emotional, they are very logical। बोलते आई अभी अच्छी थी ने कैसा रोना शुरू कर दी, तो उन्होंने बहुत हाईली फीलिंग्स में है। आप क्या करते हैं, आपको किसी से कहीं ना कहीं मोहब्बत हुई या कुछ हुई तो आप तब फीलिंग एक्टिवेट करते हैं, अदरवाइज आप वो फीलिंग का दरवाजा बंद रखते हैं। आप बिजनेस, आप देखिए बिजनेस जब करते ना तो 10 औरतें आते, आप दिल लगा लेते क्या पूरे से? नहीं, कारोबार है हाँ, आए गए, उन्होंने तुम्हारा माल अच्छा नहीं है बोल के भी चले गए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। वही जब औरत को बहुत फर्क पड़ जाता, दिल में रख लेके उन्होंने मेरे को ऐसा बोले पूरा दिन खराब कर लेती उन्होंने। तो शी हैज दैट थिंग इन हर, यू नो, कि क्यों मेरे को बोल दिया गया। नाजुक है, जल्दी जज्बात में ही आते, बिकॉज उनका नेचर जज्बात ही बनाया गया, और आपका बहुत लॉजिकल, बिकॉज आपको संभालना है हर चीज। तो अब आप सोच रहे हाउ कैन आई हैंडल हर? सो ट्रस्ट मी, एज अ मैन, being humble in front of all her emotions is the best way to deal with a woman. रो रे जान दो, नको रो। आप ही कुछ कर दिए फॉर एग्जाम्पल, आप या फिर आप कुछ नहीं भी करे, सॉरी,
से बी द हम्बल पर्सन नो, बिकॉज आप समझ गए कि द डेविल इज अटैकिंग हर और शी हैज गॉन थ्रू सम इमोशनल टर्ब्यूलेंस, जान दो ठीक है। उन्होंने फिल वक्त क्या कर रहे, फिल वक्त उसको क्या चाहिए, सहारा वो दे दो, एम्पैथी चाहिए। अरे मेरे को बुरा बोल रहे तो मैं हूं नहीं ऐसा। कभी कभी क्या होता मालूम, कुछ ऐसे फेजेस आ जाते जब औरत इतने एंगर में आ जाती और कुछ भी बोलना शुरू कर देती। शी जस्ट नीड्स टू वेंट आउट एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू द सेफ स्पेस शी इज वेंटिंग आउट, शी डजंट वांट यू गॉन और एनीथिंग। तो क्योंकि थोड़े लोग बोलते हैं ना चले जाओ बोल रही है लेकिन यहीं चलो बोल रही, तो शी इज सेइंग समथिंग बट शी नीड समथिंग, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया कि क्लियरली हमारे इमोशंस बोलो। हम ये नहीं बोल पा रहे कि आई नीड यू टू डू दिस, क्योंकि उनके मदर से इधर से उधर से वो इमोशनल क्लैरिटी हमको खुद नहीं मिली। तो बोथ ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड कि किधर बैलेंस क्रिएट करना है। सो बीइंग द हम्बल पर्सन विल ऑलवेज सेव अ रिलेशनशिप। Ma'am, what is that one thing which men possesses and women do not understand? समझदारी। हाँ, what do you mean by that? तो समझदारी दोनों में भी रहते ना? नहीं, औरत की समझदारी अलग है, मर्द की समझदारी अलग है। मर्द दूर कोई अटैक कर रहे, कोई कुछ कर रहे, किसकी नीयत कैसी है जल्दी भांप लेते। औरतें नहीं भांप सकते, थोड़ा जल्दी नहीं करते कि इनो ऐसे है। एंड कहीं ना कहीं नेचुरली प्रोटेक्टिव ऑरा रहता, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड मैन, नेचुरली प्रोटेक्टिव ऑरा रहता, उनको समझ जाना। और यहाँ मैं एक बात बोलूँगी, एक स्टोरी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे, अल्लाह का हुक्म आने पे हाजरा रदियल्लाहु अन्हु को इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ डेजर्ट में छोड़ दे के चले गए। ठीक है, मैरिजेस में कुछ चीज़ें आती। व्हेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुड नॉट इवन लुक एट देम, मैं अल्लाह तो हुक्म दे दिया, मैं मेरी बीवी बच्चों को कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, पानी का बॉटल जो मिशकीज़ा बोलते वो दे के चले गए। एंड आई एम लीविंग, ही इज़ अ प्रॉफिट एंड ही हैज़ सर्टन स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल। मैं छोड़ के चले जा रहा हूँ, उनको तकलीफ हो रही है, उन्होंने पीछे से पुकार रहे, ही कुडंट इवन टर्न। देन द लास्ट थिंग शी आस्क्ड इज, ये अल्लाह की तरफ से है क्या? So he said yes. That was the only thing he said, and he left. After that, who was the caretaker of both of them? Mother. अच्छा, both of them. Both of them, God. So that was the test. यहाँ पे women also need to understand that you have to connect to a divine source. In the end, you were made for the divine, not for like you were made for each other to bring balance in the universe. आप गॉड लव इनमें ढूंढ रहे, इनो गॉड लाइक एबिलिटीज इनमें ढूंढ रहे, समझे आप? दैट थिंग विल नॉट कम इन अ ह्यूमन। ओ वुमेन इज थिंकिंग ही शुड अंडरस्टैंड मी लाइक दिस, कुछ भी हो जाओ उसको समझ में आ जाना। अरे उन्होंने भी कैसा समझेगा, उन्होंने भी इंसान है, उसको भी नहीं समझ में आ रहा क्या है तुम्हारे इश्यूज। और मर्द ये बोलता कि समझ जाना, मैं थक के आया, मैं ऐसा आया, मैं वैसा आया। So both of them need to understand कि neither of them is God, कि एक दूसरे का दिमाग पढ़ ले। समझे आप? Because आप देखिए, उन्हें छोड़ के जा रहे तो भी उन्हें पीछे से पुकार रहे, उन्हें तकलीफ में ही छे, फिर in the end he just said yes and she understood। communication तो कुछ तो communication ना, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने in a marriage also a woman can be lonely, but that doesn't mean the husband is a bad person। समझ रहे आप? तो you need to understand कि अगर मैन वर्ल्ड के लिए कुछ करने जा रहा, आपको वो लेट गो भी तो सीखना पड़ता ना। माई हस्बैंड वेंट ऑन अ वॉर, माई हस्बैंड वेंट टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, वो देना पड़ता, बिकॉज ही इज मेंट फॉर द सोसाइटी। वी आर मेंट फॉर, द वाइफ इज मेंट फॉर द मैन, बट द मैन इज मेंट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट फॉर द वुमेन। वो तो उसका है, उसका घर है, उन्हें उसको प्रोटेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। फिर इवन ही हैज टू लीव हिज हाउस इन द पावर ऑफ द डिवाइन। गॉड के हाथों में छोड़ के जाना पड़ता ना, बट ही उसको भी इतना ट्रस्ट है ना, नहीं देख लेते तुम लोगों को अल्लाह। फिर उसके बाद कैसा देखे? टिल नाउ इट इज लाइक द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड वहां से आया जमजम, दैट द वाटर दैट प्योरिफाइज एंड क्लेंजेस एंड heals everyone। Exactly, holy water बोलते, लेकिन वो कर रहा क्या वो पानी? लोग क्या अकीदे से लेते वो पानी? पानी तो हर जगह है, but why is so much importance given to that water? The woman who sacrificed this
emotional aspect of hers, and she also put her faith in God. She didn't say मेरे को अकेले छोड़ दे. Imagine अगर ये अब हो रहा तो लड़की वाले आ जाते, आ जाते कि अरे हमारी बच्ची को छोड़ दे जाओ तुम नको, तुम्हारा घर नको में घूमेंगे. तो अपने को ये समझना है कि इनफैक्ट वुमेन ओनली हैव टू बूस्ट मेन की जाइए आप करिए वो काम जो सोसाइटी को हेल्प कर सके. गो डू व्हाट यू कैन डू. उसके जो एबिलिटीज है उसको पुश करना पड़ता. अदरवाइज द वुमेन इज हिज कंफर्ट जोन. वहीं रह जाते फिर उन्होंने. तो कभी कभी अल्लाह ताला औरत को ही ताकत देते हैं. सो और कभी कभी नहीं, ज़्यादातर औरत को ही दिए. समझ रहे आप? टू पुश मैन आउट एंड हेल्प देम. So we women have to learn. Ma'am, do you think a proper communication between men and women, especially when it comes to marriages and stuff, most of the problems will be solved if communication gap is filled? Firstly, there is a communication gap, that is true, but at the same time there is a perception gap as well. क्या हो जा रहा ना, सिर्फ one face को बहुत ज़्यादा देख ले रहे, materialistic phase. Both of the parties, they're just blinded by those materialistic लड़की things. की खूबसूरती देख रहे हैं, लड़के के पैसे देख रहे हैं. Okay. ब्लाइंडेड हो जा बहुत ब्लाइंड हो जा रहे इसमें. उसके जो रेड फ्लैग्स भी समझ आ रहे ना, नहीं इल इम्प्रूव, इट विल बी फाइन, शी विल बिकम नॉर्मल. हाँ नहीं अच्छा है. डिनायल में रह रहे हैं. डिनायल में. ये हमारी गलती है ना. सो मोर देन कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग अगेन हैज टू कम कि हम शादी से चाह रहे क्या. What do I want from a marriage? You just want that big दावत ही तो करते रहिए. बहुत करिए. अल्लाह ताला आपको और मतलब आपको बहुत पैसों से नवाजे तो आप करते रहिए. बट that man needs a partner, not a showpiece. समझे आप? कंपेनियन चाहिए. कंपेनियन के लिए कर रहे हैं आप. कंपेनियनशिप, समवन ऑफ हिज कैलिबर, वॉट एवर. हर लड़का एक जैसा नहीं रहता ना भाई. उस एक को अलग चीज़ चाहिए, एक को अलग चीज़ चाहिए. किसी को बहुत होमली चाहिए, किसी को थोड़ी मॉडर्न टाइप की चाहिए. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज. तो जिसको जो चाहिए पेरेंट्स का काम है वो अंडरस्टैंड करके दे एंड एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. बट नॉट, कैसा बोलते हैं, just communicating and not actually seeing the facts, the real facts, is the real problem. Yeah, makes sense. Absolutely. Ma'am, so I have listed a few rapid fire question. Rapid fire question बस बोलते हैं इसको. आप you answer however you like. So the first one is, what is one truth life taught you the hard way? One truth, I learned so many truths. You have to trust in the divine. That is the biggest truth that I have learned. Trust in the divine. Trust in the divine. Exactly. Okay. The second one. What emotion causes the most damage when left unchecked? Jealousy. Why do you say that? पूरी यूनिवर्स की कहानी वहीं से शुरू हुई. कैसा पूछो? सजदा करो बोले. Exactly. उनको कहीं कर भाई मैं बड़ा हुआ. मैं इतना इल्म वाला हूँ. Not even इल्म, but आग से बना हुआ हूँ ना मैं. आग से बना हुआ हूँ. Why him? मिट्टी के. Exactly. तो वो why him एक हसद. इसलिए तो there is a surah that came down for hasad because it's a very bad thing, like कैसा बोलते हैं, very bad emotion जिसकी protection the divine only can do. You can't do it on your own. And also जो हमारे जो किताबों में आता है कि सबसे first जो murder हुआ था human that was because of jealousy. Yeah, the son of Prophet Adam. Okay, very good answer, ma'am. Father and daughter मिलके बिजनेस स्टार्ट करो. ठीक है, बच्ची बिजनेस करती, बाप पीछे बैठ के देखो. हाँ बेटे मैं हूँ, बहुत बूढ़े है तो. बच्ची को कितनी हिम्मत रहती मालूम. फखर से कहाँ की सर ऊंचा हो जाता अगर फादर साथ में है बोले तो. मेरे को फादर नहीं दिए साथ तो मैं वो फीलिंग वॉइड समझ सकती हूँ. अगर खाली पीछे बोल दिए बेटे मैं हूँ, तू करो कुछ है, फिर फादर समझा लिए नहीं बेटे ऐसा नको करो, ऐसा कर लेंगे अपन, तो कितनी खुश रहती मालूम. कितना बड़ा रिस्क लेने का हिम्मत आ जाती. मेरा बाप पीछे खड़ा हुआ है मेरे, मैं रिस्क लेता. I love those women who are blessed with good fathers. अल्लाह अच्छे बाप का मुकाम भी बना के रखे, क्योंकि हम उस वर्ल्ड से गुजरे कि नहीं ठहरे हमारे पीछे. हम तड़पते रह गए लेकिन नहीं ठहरे.
मगर अल्लाह करे कि जिसकी है ना, आप बदलो अगर आप फादर हैं तो। मेरे अगर किसी को समझ आ रही बात तो स्टैंड बिहाइंड योर डॉटर, शी विल हैव हर ओन रिस्क। और आप क्या करो, एक फ्लैट वैट दोनों खरीद लें के काबिल हो जाती, रहने दो उसको, किसी पे के बलबूते पे नहीं, कुछ तो खड़ा करके दे दो। समाज क्या बोलेंगे, अकेले कैसे रह रही। वो बच्ची जीती, अल्लाह का शुक्र है काबिल हो जाती, आप उसको एक अभी कैसे हो गए सर्विस डिपार्टमेंट्स हो गए जहाँ पे वॉचमैन सिक्योरिटी सब है, वहाँ दिला दो। जब उसका वाकई अच्छा नसीब का टाइम आ जाएगा तब आप आराम से उसकी शादी करिए। और ऐसा होना शादी की सामने से वो बच्चा ऐसा रहना कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। दिस इज द मेन रीजन ऑफ मैरिजेस नो। खुशी तो देखिए, अरे शादी हो रही बोलते कि कोई भी मेहंदी लगा लेती खुशी में, भाई मेहंदी लगाती, मेकअप कराती, सजती सवरती, काम ही है ना हस्बैंड के लिए सजना सवरना। कभी भी सजना सवरना करना है करते जाइए, नो रोक टोक इन दैट। ये चीज़ों पे खर्चा इज़ फाइन अगर कर ले रहे, क्योंकि एक वुमेन का रहता ही, आप कुछ भी कर लो, मेरे को भी अच्छा दिखता, मैं सैलून गई, मैं ये करी, आई लाइक टू फील पैम्पर्ड, वेरी गुड, दैट इज वुमेनली खर्चे। फिर अगर उन्हें उतने भी ख्वाहिशा नहीं करी तो आप कमा के क्या करते हैं, समझे। पूरी दुनिया चल रही है औरतों की थोड़े बहुत ये चीज़ों की ख्वाहिशें रहना, मगर इतनी नहीं रहना कि सबको नुकसान हो जा रहा। Exactly. समझे, जहाँ तक आपको खुशी मिल रही, क्योंकि मिलती, कंट्रोल रहना, बैलेंस्ड रहना, बैलेंस, हर चीज मॉडरेशन में रहना। एग्जैक्टली, वो मॉडरेशन बाहर निकल जा रहा। एंड ऐसा भी हो जा रहा कि फादर्स थोड़े ऐसे हो गए कि क्या करेंगे, खानदान में इज्जत नहीं रहती, बल्कि अपने ऊपर ही खुद मुसल्लत कर ले रहे। कोई दूल्हे वाले बोलते भी नहीं, कुछ ऐसे भी हैं खुद मुसल्लत कर लेते, खुद ही बड़ी शादी कर लेते, फिर खुद ही पछता लेते, हम इतनी बड़ी शादी करके दिए, अब डिवोर्स न को लियो। वाह, अरे हाँ ने इतना, इसीलिए फिर अरे ये बेचारी यहाँ पर भी अटक गई कि तुम्हारी शादी के पीछे इतना खर्चा हुआ, अभी तक खर्चे फेड़ रहे, कहाँ से छोड़ना, क्या कर लेते अम्मा, नको लड़ लो, इतने पैसे खर्चा करे, हमारे घर को वापस। वही जिसका खुद का एक घर रहता ना, खत्म। हर बच्ची को यहाँ पे सब चीज़ें जो है माँ बाप की ख्वाहिशों के हिसाब से ही हो रही, या केयर गिवर्स की ख्वाहिशों के हिसाब से ही हो रही, और अटक रही है बेचारी जाके। वेरी ट्रू। तो मैं यही तो समझा रही हूँ कि वो पहले के नस्लें जो थी, जनरेशन्स, अपने वो थॉट्स लेके आके यहाँ पे वो कर रहे। बट एक बात बोलती हूँ मैं आपको, इस्लाम को एक्सेप्ट करना, इट वॉज नॉट लाइक व्हेन आवर प्रॉफिट केम और इस्लाम के बारे में बोलना शुरू करके देयर इज ओनली वन गॉड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वॉज सेड कि दे वर ऑन द रिलीजन ऑफ देयर फादर्स, forefathers, correct. What is the religion of their fathers? They were saying Allah है, but they had all their cultural associates. things. हम ये cultural में ये ऐसा ही करते, हम इन कुछ मानते, हम ऐसी करते, तुम भी मानो। नहीं मानना है बोलते जा रहे। तो अब बच्चियां डील ब्रेकर्स बन रहे मालूम। They have to learn and they are only, अब कैसा हो गया मालूम, ठीक है मम्मी पापा भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, कहीं भी चले आते, अकेले रह लेते, कर लेते, इज्जत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। और अल्लाह ताला ये मिलेनियल्स वाली जनरेशन शायद बच्चियों की इसलिए ही बनाए, रेबेलियन। डोंट लेट इट गो टू फार, डोंट लेट इट गो टू फार, बिकॉज हम रिबेल करके पीस लाना चाह रहे, रिबेल करके हैवक नहीं क्रिएट करना चाह रहे। अगर कोई समझदार हो गए तो ये समझना है कि आगे मेरी नस्लों को मैं नहीं दूंगी ये परेशानी। आई टुक इट, फाइन, आई विल कन्वर्ट पेन इनटू पावर एंड पॉजिटिव एनर्जी, लेट इट गो इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। मैं अपने ऊपर ले ली, यहाँ से मेरी नस्लों को कुछ नहीं होना, हो गया खत्म। आई विल प्रोटेक्ट, आई विल बिकम दैट, एंड हु इज गिविंग मी दिस पावर? गॉड। तो जो लव की, देखिए औरतों को बहुत पसंद की somebody should love them, तो मेरा ये मैसेज है कि find that love in God, because God will never say, you know, you're like this, like that. Never no, betray. Never. The minute you say, God, I trust you, in whatever name you want to call God, call him, tell him, God, I trust you, take care of me, change my name if he is not taking care of you. मेरा नाम ईमान है, ईमान means faith, and मैं अल्लाह का शुक्र है वो रस्सी को देखी हुई हूँ, that is faith, that is so strong, he will not let you fall. Everyone will fail you, but God will never fail you. Yeah. 100% putting trust in God is अगर ये इमोशनल कैरेक्टर बैलेंस करना है ना बच्चियों को, इफ दे आर अलोन एंड दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देयर इमोशनल कैरेक्टर्स, दे हैव टू आइसोलेट देमसेल्फ एंड कनेक्ट विद गॉड।
that is the only place love will come, and women will connect with God because उनके पास है वो. They very easily can access divine abundance. What is divine abundance is there's a Surah Maryam. She had devoted her love and everything to God. So God himself was providing her provision. उनके जो मेरी मदर मेरी जो बोलते हैं, her chamber was always filled with fruits and off seasonal fruits. So people used to be like, how? My God is sending. So be so rooted in God that God will take care. ये materialistic के लिए जो आप डर रहे हैं, औरतें थोड़ा डर रहे हैं आजकल, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मत डरो. मटीरियलिज्म भी अल्लाह कहीं से प्रोवाइड कर देते और बहुत अच्छा प्रोवाइड करते. आपको भी गाइड कर देते कि तुम ऐसा करो, मटेरियल वेल्थ मैं दे देता हूँ. क्योंकि औरत को मटेरियल वेल्थ की कमी कभी नहीं करते अल्लाह ताला. औरत को ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मटीरियलिज्म वाज डिजाइंड फॉर हर. नो, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए. तो अल्लाह ताला समझते वो एस्पेक्ट. आई मेड यू, सो आई अंडरस्टैंड दैट हैविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो इट विल कम फॉर यू. Absolutely. For women. Absolutely. So the next one is what? Acha ma'am, since you mentioned 2024 was the point when you changed your path and went totally spiritual. You started your journey at the age of 19 when you had a daughter and your family wasn't supporting you. जब तो spiritual intervention कुछ भी नहीं था. How were you managing, ma'am? Mentally कैसा खुद को stable रख रहे थे? Business भी करना है, बच्चे को भी संभालना है, पैसे भी कमाना है, पढ़ाई भी करना है. Trust me, it was जो passion बोल के word use होता ना, हर चीज़ में passion नहीं डालना वर्ड, बिकॉज पैशन इज दैट थिंग दैट कैन ड्राइव. इतना पेन रखते हुए भी आप कुछ करने, जब वो प्रूफ करने पे चले गए, यू आर सो पैशनेट, यू आर सो ब्लाइंडेड टू प्रूव द वर्ल्ड हु यू आर. समझ रहे आप वो जो इमोशन या फिर जो इंटेंसिटी मैं फील कर रही थी, मैं ना लेफ्ट देख रही थी ना राइट देख रही थी. खत्म. फोकस, डिसिप्लिन नहीं करना है, क्योंकि वो एक आ गया था. और सेकेंड चीज, आई डोंट वॉन्ट टू गिव माई डॉटर अ बैड लाइफ. वो थॉट मेरे अंदर आ गया था. मेरी बेटी को कमी नहीं होना. आई विल डू वॉट एवर, आई विल गो टू वॉट एवर extent I have to, just to make sure that my daughter have a good life. माँ क्या पावर है वो जो मैं, आप सवाल करे, मैं खुद नहीं रियलाइज करी, बट दैट वाज माय मदर, दैट वाज द थिंग. आई वाज जस्ट अ 19-year-old, but the minute I became a mother, something changed in me. There is a experiment done in a lab जहाँ पे एक चूहे को रखा गया, उसके पीछे बिल्ली को लगा दिया गया, और वो चूहे का जो पुल है उसको मेजर किया गया, और एक उसके बाजू की एक चूहे को रखा गया, उसके सामने चीज़ रखी गई और उसके पुल को मेजर किया गया कि कितनी फोर्स से वो चीज़ की तरफ भाग रहा है. और वो जो चूहा था जिसके पीछे बिल्ली को लगा दिया गया, उसके फोर्स को मेजर किया जा रहा था कि कितनी तेज़ी से वो बिल्ली से दूर भाग रहा है. आपके केस में ये दोनों भी चीज़ों को ऐसा क्लब कर दिया गया है. आप किसी चीज़ से भाग रहे भी थे और किसी की तरफ भाग रहे थे. आप यू वांटेड टू प्रूव द वर्ल्ड, वो आपकी चीज़ थी, और यू वांटेड अ गुड लाइफ. एक डर भी था कि मेरी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देना है, ये फियर था. तो देयर वाज वेरी ट्रू. एक वो बेटी को अच्छी ज़िंदगी देना है, एक फियर भी था, और एक जुनून भी हो गया था कि नहीं, देख के रहती हूँ, करके रहती हूँ, कर लेती हूँ. पता नहीं कहाँ से आया था, क्या था, बट ये था मेरे माइंड में. On a scale of 1 to 100, what would you rate your difficulties during this time, ma'am? Which time? During the 19 years old phase. Now that I'm very mature, I will rate it righteously. Okay. अगर मैं वो दर्द के फेज में रहती तो मैं ये बोलती कि मैं सबसे ज़्यादा दर्द में थी, और मैं एक्चुअली बहुत दर्द सही. उसके बाद भी बिजनेस में भी कुछ लॉसेस हुए, एंड कुछ पार्टनर्स के साथ अनबन हुई, और एक बहुत गहरा ताल्लुक़ मेरा, वो एक बैकबोन के जैसा कोई मेरे साथ खड़े थे, एंड दैट पर्सन कुडंट सपोर्ट मी एनी मोर. तो बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ. तो मैं ये बोलूँगी कि 90.
वो जो मेरे दिल में आवाज़ आ रही है राइचियसली 90 बोल रहे. राइचियसली 90 बोल रही. क्योंकि जिस लोग मेरे को हंसता मुस्कुराता देखे, मेरे चीख, मेरे पुकार, मेरी दर्द, मेरी रोना अगर कोई देखता तो वो दर्द में मेरे को देख के उन्हें दर्द में आ जाता. उतने लेवल का भी रोई हूँ मैं. और ऐसा भी टाइम रहा दैट आई हैड लिटरली नो वन टू अंडरस्टैंड मी, सो आई fled my city and I found solace in Medina. समझे आप? मतलब I was lonely. I had no human person कि मेरे को एक स्पिरिचुअल में चले जाना पड़ा और वहाँ से मेरे को भीख मांगना पड़ा. God help me. I went and I cried. मैं टूट गई. Imagine that girl जो 19 years से अभी क्या बोलते 27 कुछ ऐसी थी मैं. हिम्मत की फिगर थी. लोग मेरे को देख के इंस्पायर हो रहे, उन्होंने इतना हिम्मत करके इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन गई, ऐसा हो गई वैसा हो गई. वो फिगर. और मेरे टीम में जो भी बच्चियां हैं ना, वो लोग ये सोचते कि मैं टूटती हूँ नहीं. वो लोग यही समझते कि दी आप पूरों को समझाने वाले, आप टूट सकते क्या? ट्रस्ट मी, मैं उतना टूट गई थी और आई कुड लिटरली फील दैट मेरी बैकबोन ठहर नहीं सक रही. इतना फिजिकली मैं डैमेज कर ली थी. वो इतना प्रेशर लेके आई सेड बस अल्लाह मियाँ, अब इम्तिहान और नहीं हो रहे, नहीं सह सक रही हूँ मैं. दैट वॉज द टाइम आई ब्रोक एंड दैट इज़ व्हेन आई वेंट स्पिरिचुअल बिकॉज the divine protected me, the divine held me through all my sorrows, healed me, and then made me able to sit here again and tell people that it's okay. Ma'am, what was the burden, if you're comfortable sharing? मैं आपको यही बात बोली ना, औरत जिंदगी भर मोहब्बत की तलाश में रह जाती. बाप से नहीं मिली, शौहर से नहीं मिली, माँ बहन नहीं अवेलेबल थे, एक दोस्त में ढूंढना शुरू करे. वो दोस्ती बिकॉज ऑफ आई हैड वेरी क्लियर बाउंड्रीज. तो मैं वो बहुत अंदर रख ली थी कि आई यूज टू थिंक दैट ये शायद पॉसिबल चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है. बट देन वहाँ से भी मेरे को समझ में आ गया दैट जस्ट बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई. तो मैं समझ गई कि दुनिया मोहब्बत नहीं कर सकती. एंड वन मोर थिंग दैट मेड मी रियलाइज दैट कि जब मैं पूरी चीज़ें, मैं बोली ना आपको, आई बिकेम वेरी रिच, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गई थी. तो उसके बाद भी इंस्टेड ऑफ, कुछ लोग मान के बस कैसे हो गए, अब हो गया, इतने वो हो गए. एंड देन दे स्टार्टेड jealousy and hating on me, and कुछ ऐसी फेलो बिजनेस पीपल भी बोल सकते जो रॉन्ग, अब मैं वैसे नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट रॉन्ग एनर्जीज यूज करके To that इसका extent. बिजनेस खत्म हो जाओ, इन्हें टूट जाओ. मतलब मैं पहले तन्हा अकेली, मैं पूरों के लिए. और मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाई ना, मैं ये बोली बेटे यू विल डू. आई गेव देम पावर. आई नेवर टॉट एनीबडी टू बी पावरलेस. मैं सबका भला चाही, किसी के लिए नुकसान नहीं करने की. कहीं नुकसान नहीं करी. मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास से मेरे को मैसेजेस आते वाया ब्राइड्स की, क्यों जा रहे हैं उनके पास, क्यों बुक कर रहे हैं उनको. फिर मैं क्या बोलती हूँ, जान दो. फिर वो ब्राइड्स मेरे को कभी ये भी सुनाते कि उन्हें आपकी इतनी बुराई करे. मैं बोलती जान दो, उन्हें मेरी बुराई करके खुश थे होंगे, जान दो. आई डोंट वांट टू लिसन. एक हद रहती. तो मेरी एक जगह जाके हद टूटी थी कि मेरे पास करियरिच था ना सब मेरे पास, मैं खुश थी उसमें. एक अब ऐसा हो गया था कि वो भी छीनना चाह रही दुनिया मेरे से. इतनी जेलसी. मैं क्या कर रही हूँ? बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी ना मैं, आर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ. आई एम गिविंग अ सर्विस ऑफ आर्ट. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे को बहुत अच्छा हाथ दिए. आप कुछ पैसों के बदले में आपको बहुत अच्छी आर्टिस्ट्री दे रही हूँ. तो जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत पैसे आ जा रहे मेरे पास, तो इतनी जेलसी. और तो मैं है बहुत ज़्यादा है. वहाँ समझ में आ गया कि शिट, मैं ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में आ रही हूँ. तो 2024 के बाद मैं थोड़ा कम लाइमलाइट में चले गई, ज़रा होना बल्कि ही पीछे हट गई. लाइक आई वांटेड टू एनालाइज लाइक व्हाट इज़ इट. अल्लाह ताला, मैं दुनिया भी हासिल करके देख ली, मोहब्बत नहीं मिली.
आई यूज टू थिंक इफ आई बिकम रिच एंड सक्सेसफुल आई हैव द लव ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं मेरे, बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे को इतना बड़ा बनाए. बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल कुछ लोग पैदा हो जाते हैं आपके दुश्मन. तो दैट वाज आल्सो देयर. मैं सोच रहा हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा. अगर मैं उनकी जगह पे अगर मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ अच्छा ईमान जैदी है, उन्होंने क्या करे, ईंट बर ईंट रख के एक एम्पायर खड़ा करे खुद की बिजनेस का. मेरे को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है अब. उनके पास पैसे ज़्यादा आ जा रहे हैं, कुछ भी करके अब गिराना है इनका. क्यों सोच रहा हूँ मैं ये क्यों आ रहा मेरे दिमाग में ख्याल. ताकतवर औरत किसी को देखी नहीं जाती और खुश औरत और भी नहीं देखी जाती. क्यों नहीं देखी जाती भाई? जेलेसी में आपको क्या बोली, जेलसी का कोई रीजन नहीं रहता. नहीं रहता, बस एक वार है ये. वी हैव टू, दैट इज व्हाई आई एम कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी की. औरतों को समझ जाना चाहिए कि जैसा वो वार आया, जेलेसी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक है ऑन योर सोल. एंड एज यू आर वेरी पावरफुल स्पिरिचुअली, दो भी जगह अटैक होता, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ devilish nature. Because devil is jealous. Maybe the devil is jealous of me. उतना अच्छा काम कर ले रही, दुनिया में आगे बढ़ जा रही. तो इंसान के उसमें ही डालेंगे ना, विस्पर्स अलाउड है. इंसान के उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विस्पर डालते. सो इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, लाइक आप समझ सकते, अवेयर हैं, तो आप क्या करते, ओके लेट मी जस्ट डाइवर्ट इट टू समथिंग, नो आई एम प्राउड ऑफ यू. या फिर आप इसको ऐसा डाइवर्ट कर देते कि चलिए अल्लाह गेव इट टू हर थिंग, I have my thing to do. But nosy चीज़ें ज़्यादा किस में हैं? औरतों में. Men will not have this aspect, but औरतों में बहुत ज़्यादा है. एक बार थोड़ा पॉज लेके अगर उन लोग एक क्वेश्चन कर लिए कि yes, ये क्यों आ रहा मेरे ख्याल, क्यों आ रहा, ये पूछो. जान दो, बना लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, अपने ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, मेहनत कर लिए उन्होंने, खुद का बना लिए. ऐसा नहीं सोच सकते होंगे? मैं चाह रही हूँ सोचो, क्योंकि वो इमोशनल बहाव इतना हो गया स्प्रेड की. मेरी ज़िंदगी ऐसी रहना था क्या? मैं भी ऐसी बनना था क्या? मेरे को भी वो फेमडम होना, मेरे को भी ऐसा होना, सबको फेम होना, सब रिजल्ट्स होना, मगर मेहनत किसी को भी नहीं करना है. तकरीबन लोगों को अब कैसा, अब फेम इज़ वेरी क्या बोलते हैं, चीप अकॉर्डिंग टू मी. ये सोशल मीडिया आने के बाद से यू डू अ स्टूपिड स्टंट ऑल्सो, यू विल बिकम फेमस. बट मेरा ये है कि फेम हर किसी को सूट नहीं होता. देखें, मेरी एक कहानी थी, मेरा एक पीछे माइंडसेट था, एंड आई केम इनटू दिस एंड आई डिडंट आस्क फॉर फेम. काम इतना अच्छा करती गई कि वो खुद ही नाम बन गया. मैं कहीं भी आप देखिए, मेरा सोशल मीडिया उठा के मैं कहीं भी बैठ के ऐसा अपने आप की तारीफ कर ले रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ. मेरा पूरा जो मेकअप बाय ईमान जैदी का पेज है, काम और मेरा कंटेंट भी बहुत कम है जितना दूसरे लोगों का रहता ना. इतने इयर्स में मैं काम करी और इतने सारे ब्राइड्स करी, अपने पास पर्दे का वो रहता. मैं उन लोगों को भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ. किससे मेरा काम चला? मैं वही सिंपल वर्ड ऑफ माउथ, लोग बोले उन्हें अच्छा करे, उन्हें अच्छा करे, उसी से ही चला. और मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ जो लोग वैसी चीज़ें करे. ट्रस्ट मी, रिस्पेक्ट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन फेम, इट इज़ फॉर्म्ड इन योर वर्क एंड योर कैरेक्टर. एग्जैक्टली. नो मैटर हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव. मैं ऐसा भी कई लोगों को सुने, आई you know she's like this, she's like that, or he's like this, he's like that. है नाम का फेम है, लेकिन उन्होंने कैरेक्टरलेस है, ऐसे है. इन द एंड इट कम्स बैक टू कैरेक्टर. तो फेम अगर आपको बनाना है ना, तो कैरेक्टर को भी स्ट्रांग रखते हुए बनाइए, अदरवाइज इट विल शेक यू, इट विल टेक यू अवे. एंड वो उसमें जब आप बह जाते, तो आप जब रिग्रेट करते, एंड जब फेम का ईगो चढ़ जाता ना, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता, बहुत मुश्किल. और getting famous for the sake of getting famous is so hollow, क्योंकि कुछ बैक करने के लिए है ही नहीं. What is your story? Why did you choose this path? Okay, you have fame, but what is your message to the world? क्या है? ठीक है, आप चाह रहे कि सब आपको देखो. Now they are seeing. Now what are you installing in them? Exactly. अब आप ये इंस्टॉल कर रहे कि बहुत सारे गर्ल्स में ये हो जा रहा कि I have this lifestyle, I have this bag, I have this, I have that. कुछ वैल्यू देना नहीं है, दे भी नहीं सकते मेरे ख्याल से, because they started for the sake of getting famous. Exactly. तो कुछ बच्चियां हैं जो like they are very old influencers, बहुत टाइम से कर रहे, तो मैं उन लोगों का बहुत पसंद करती हूँ. देखिए, इफ़ यू वांट टू इवन इन्फ्लुएंस पीपल की अबाउट मेकअप और कुछ सर्टेन क्लोथिंग, क्योंकि औरतों को पसंद है ये,
but there are certain influencers who have just started acting weirdly, बदतमीजी का टोन बहुत ज़्यादा यूज़ करके जो कर रहे, वो मेरे को समझ में नहीं आता. आई फील यू आर लूजिंग योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट इन अर्निंग दैट काइंड ऑफ फेम. Exactly. यू नो, लाइक दोज लैंग्वेजेस वेर ये तू क्या कर रहा, कहीं को ऐसा, मैं ऐसा कर ली, यूजिंग वल्गरनेस टू गेट फेमस. एंड वो लोग हो रहे भी, आई डोंट नो, लोगों को देखना एंटरटेनिंग लग रहा है, पता नहीं. वो किस्म के ऑडियंस ही पसंद करते हो. यू विल नॉट गेट क्वालिटी ऑडियंस. मेरे को भी लोग अप्रोच करते, बोलते कि बाज़ लोग बोलते कि आप उतना मत मिलिए लोगों से, थोड़ा डिस्टेंस रखिए थोड़ा. आई एम लाइक, मैं नहीं कर सकता हूँ वैसा. आई कैन नॉट स्लीप अगर मैं वैसा अकड़ में रहा तो. मेरे को ऐसे ही रहना पसंद. और दिस इज हु आई एम. ये औरतों को भी समझने की जरूरत है. एग्जैक्टली. मेन नो हु दे आर, वुमेन डोंट नो हु दे आर. दे थिंक मैं उसके जैसी बनूं, या मैं उसके जैसी बनूं, या मैं इसके जैसी बनूं. किसके भी जैसी मत बनो. अल्लाह ताला आपको क्यों बनाए, who you are, you find out. You might say, oh, she's doing this, I'll do it. But when you try to do it, no, it will drain you. आप वो है ही नहीं. आप एक बहुत कोई रहते, कोई होमली रहते, उन होमली चीज़ों के लिए ज बने हुए. तो उन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहती ना, नहीं, ओ यू आर डूइंग वेरी वेल, माशाल्लाह आप बहुत फेमस है, आप अच्छा वो कर रहे, ये कर रहे, ओके, मेरे को नहीं आता, आप जो कर रहे, मैं उसको एडमायर करती हूँ. ट्रस्ट मी, द पर्सन हु इज फेमस, नो, शी विल एडमायर दिस होमली पर्सन. मेरी एक दोस्त है, क्या ऑनेस्ट है बोल के. एग्जैक्टली. मेरी एक दोस्त है, शी इज वेरी होमली, and I do not see any kind of jealousy or anything. She is actually creating that kind of home. मैं जो बोलती हूँ ना, मदर पावर. बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग, अभी छोटे उनके बेटे, मगर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेटों को बना रहे हैं. अखलाक खुद वो औरत के अखलाक इतने अच्छे हैं. और कभी भी मैं उसके पास, लाइक शी इज़ नॉट वेरी financially well off or anything, but she has a small home, but you will feel so much peace in her house that you'll go and sit over there. Serenity वैसी जगहों पे मिलती. Exactly. Ma'am, imagine your grandchildren are watching this conversation 50 years from now. What warning would you leave for them about modern life? Warning. I think I will definitely tell my daughter क्या करना है क्या नहीं, but don't ever compromise on faith. जहाँ ईमान की बात आ रही, वो चीज़ ही छोड़ दो. Because faith will be the most precious thing. Faith and character will be the most precious things you'll ever have. बाकी कुछ भी, दुनिया हो, मोहब्बत हो, या कोई रिश्ता हो, या कुछ भी हो, जहाँ आपके फेथ और कैरेक्टर की बात आ रही, आप उसको फेथ एंड कैरेक्टर बचाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए. How would you explain faith, ma'am? Faith is a very big gift. Okay, it's not given to everyone, but everyone is allowed to come to it. Okay, लोग ये बात नहीं समझ रहे कि it is there, it is here, and everybody is on different levels. Some people are naturally, maybe उनके पेरेंट्स दुआ करे या कुछ ऐसा करे, naturally थोड़ा उनके अंदर faith, spiritual बोलते हैं ना, वो ज़रा ज़्यादा रहते हैं. थोड़े लोगों के लिए क्या है, 2-3 ऑब्स्टिकल्स ज़रा रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, फाइट करके आ जाना है फेथ की तरफ. फेथ इज़ देयर फॉर एवरीवन, बट टेस्ट्स आर डिफरेंट. एंड ट्रस्ट मी, समवेयर और द अदर इन लाइफ पीपल विल एक्सपीरियंस अ सुपरनैचुरल थिंग. होता उनको, और सबको ये मालूम हो जाता, एक ईविल चीज़ मेरे को सताई थी, वो ईविल ड्राइव क्यों है, हम समझ जाना कि इसका मतलब एक ऑपोजिट में एंजेलिक ड्राइव भी है, एक एंजेलिक फोर्स भी रहेंगी. तो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. एवरी ह्यूमन बीइंग विल फील दिस, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ दोज गॉड्स प्लान्स. अब नाउ इट्स अप टू यू. You want to go into the negative drive or you want to go into the positive drive. Then you come to the faith. Now, why is faith so important? Because that is the ultimate power. We are all here in this world for a test. Okay? And it's like God is seeing us on a screen. We are literally inside a phone or a big screen or something. We are thinking that we are here. This is the reality. But actually,
we are the soul. Everybody is a soul. ना masculine है ना feminine भी है. The soul is not masculine, feminine. It is a light. It is a very big, powerful light. But the challenge is, I'll put you in a male's body, and this light, I'll put you in a woman's body. Now, overcome. मर्द को वो challenges आए, फिर औरत को challenges आए. तो हर जगह आपको क्या चीज़ कोई बुरी चीज़ करने से रोकती? आपका किरदार, फिर आपका ईमान. इसलिए I said faith and character. People of character will never hurt other people, no? क्योंकि they understand that it's not good to hurt people. There's karma. अगर there's कोई मेरे something. साथ अगर करे तो I won't feel good. Exactly. How will I feel? तो जिसके पास कैरेक्टर है उन्हीं के पास फेथ है, और जिसके पास कैरेक्टर नहीं है उनके पास फेथ नहीं है. सो दिस इज अ वॉर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु हैज़ कैरेक्टर लेफ्ट एंड हु डजंट हैव इट लेफ्ट. बिकॉज आप देखिए, कोई बहुत ही बेहया, बहुत ही वाहियात कोई ऐसी चीज़ हो गई तो पीपल ऑफ कैरेक्टर विल बैक आउट फ्रॉम इट. उनके पास वो रहता. अभी यही दौर है ना, पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर टू बिकम whatever, and people are flowing away. But are you flowing with character or are you flowing with दिखावा? तो जब आप वो समझ जाते हैं कि what character is, then you will understand what faith is. Absolutely. Ma'am, what is that one message which is close to your heart और आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं? सच वाला बोलूं? नहीं, झूठ वाला. नहीं, मैं सिर्फ सच बोल सकती हूँ. प्लीज. और जो सबसे सबसे सच्ची बात है, भले आप कोई भी हो, नबी से मोहब्बत कर लो. लव योर प्रॉफिट. ही वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, लव, लीडरशिप, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस एक्यूमेन उनका बहुत अच्छा था. वेरी गुड, क्या बोलते हैं आप, वॉरियर, एंड अ वेरी गुड फ्रेंड. Everything that you are looking for in life is with him. How, if some people treat you badly, how he treated others with good respect. He is the perfect vessel, and it is क्या बोलते, acknowledged by most of the people. Like they might not be from the religion of Islam, but they say that Michael Hart's. कि Muhammad is the highest. Yeah, Michael Hart's. There is a book called 100 Most Influential Human Beings on Planet Earth, and yeah. So our prophet comes on the first. जब कोई दूसरे भी मजहब के लोग ये समझ रहे, तो हम कैसा यही मजहब के होके बोल रहे कि we follow him. We don't follow him. We call ourselves Muslims, but we are not Muhammadiyun. To become Muhammadiyun, you have to be of his character and his faith. Character से समझ में आ जा रानी है पल्लो गावल के. Character build करना है, and make your life about loving him because he loved us, and make your life about building his character. A role model. Role model उन्हों ही रह सकते और 100%. कोई नहीं. Ma'am, it was a privilege of the highest order to have you with us, ma'am. Thank you so much. I'm truly grateful for all your life lessons, your teachings, your experiences, the incidents you have shared, everything, ma'am. I know for a fact it is very difficult for an individual to share their personal life stories, but it is going to impact so many lives who are going to listen to this episode. Truly grateful, ma'am. Thank you so much. मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं. Please. I am also extremely grateful because this is my first podcast with someone, जैसे मैं बताई थी, और आप बहुत संभाल के हर चीज़ questions करना और बहुत संभाल के लेके चले, which I'm really honored, and you made me feel at home, peaceful, and you yourself are an inspiration. और आप जो है सो जो आप prove कर सके कि you went from where did you start? Kashmir to Kanyakumari. Yeah, Kashmir to Kanyakumari. तो मैं वही बोली कि करना चाहे तो कोई भी दौर में कुछ भी कर सकते हैं. 100%. तो मैं वही देखी कि इंसान को करना था, उन्होंने करके बताए. So you have also showed कि I wanted to show this, and in this world anything is possible. And you are actually inviting certain people and sharing a lot of wisdom. तो अल्लाह करे आपके काम में और बरकत हो, and
may the people understand this and become more wiser, and may this platform of yours be a beacon of light. Amen, ma'am. Truly grateful, ma'am. Thank you so much for your kind words. Truly appreciate your kind words. Thank you so much. Thank you. Thank you. How was it, ma'am? People, we have a slightly crazy dream. Our goal is to make Table of Wisdom one of India's top 10 podcasts by the end of 2027. Now, I can't do that alone. If even one conversation on this channel has ever made you think differently or helped you make a better decision, I would love for you to hit that subscribe button and follow us on Spotify and Instagram. Every single subscription and follow tells YouTube, Spotify, and Instagram maybe more people should watch this weird guy asking strangers uncomfortable questions. I'm Furqan Ahmed, your host. Thank you for being a part of this journey.